So let's start. This is our third lecture from Units and Dimensions. So in the lecture number 1, we have seen units and measurements. We have seen what are measurements, how do we do the measurements, how measurements and units are connected with each other, types of units. Then we have seen the conversion of units. All those things we have covered in the lecture number 1. In the lecture number 2, we have seen the dimension and its application. We have seen the principle of homogeneity and significant figures. So now we switch on to the third lecture, and this lecture is on errors. This lecture is one of the most important lecture in terms of problem solving because most of the questions in JEE, NEET, and the class 11th also we got it from the errors only. And as we all know, measurement is quite fundamental for physics, and error is quite inevitable for the measurement. So on that perspective, this chapter is also very important. So let's begin. So as we all know, we'll start from the same story. Physics, as we all know, is an accurate science, is the manifestation of natural phenomena and a relationship between the physical quantities. So for instance, one natural phenomena is depending on one physical quantity and second physical quantity. So in order to quantify that natural phenomena, we need to know the physical quantity. And how do we know the physical quantity? Through the measurement. And how we do the measurement? Through some standard units, standard quantities. So measurement is at most important for physics. Once we do the measurement, these errors are inevitable. You cannot avoid the errors. Why? Because any measurement which you do, because no one knows the right value, no one knows the true value. Any measure, suppose you have to measure the mass of this. Suppose you have to measure the mass of this block. So the person A say it is 1.02 kg, person B say it is 0.098 kg, person C will say it is 0.99 kg. So who is correct in this? No one is correct, because no one knows the true value of it. But everyone is approaching towards certain value, but no one knows the true value. So that's why we have to accommodate certain error into our observation. We have to accommodate certain error into our measurements. So as we have just discussed, no measurement is perfect. Why no measurement is perfect? Because any measurement requires three factors. One is the instrument, second is human, and third one is the technique through which we are using the instrument. So these three things are there. So maybe your technique may get wrong, or technique gets some tweaking. Your instrument may be not calibrated, or some external environment has created some issue with your instrument. And the third one is the human bias. कि अगर आप इस डायरेक्शन से देख रहे हैं तो आपकी रीडिंग्स कुछ और आएगी, अगर आप लेफ्ट डायरेक्शन से देख रहे हैं तो रीडिंग कुछ और आएगी, अगर आप बिल्कुल टॉप से देख रहे हैं तो रीडिंग कुछ और आएगी. सो इट डिपेंड्स ऑन द ह्यूमन बायसेस ऑल्सो. So that's why errors are inevitable. You cannot avoid the errors. You have to accommodate the errors. You have to go along your measurement along with the errors, so that you can easily quantify them, so that it will tell you कि कितना confidence है आपको आपकी रीडिंग पे, कितना confidence है आपको आपकी रीडिंग पे. ठीक है. So now errors help you quantify how confident are you in your measurements. So suppose मैंने ये mass 1 kg of mass so I can say this weight of this mass of this block is 1 plus minus 0.2. So I can say with confidence कि 99% ये जो mass ये जो block है mass का ये within this range lie करेगा. So I have quantified my error. I don't know the true value. True value मैं कैसे निकालूंगा? मैं multiple observation लूँगा. C ने कुछ observation, D ने, E ने, multiple observation. जितनी ज़्यादा observation लोगे उतना you will get close to your true value. ठीक है. जितनी कम ऑब्जर्वेशन उतना थोड़ा दूर रहेंगे हम ट्रू वैल्यू से, जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेशन उतना क्लोज टू ट्रू वैल्यू. तो हमने मल्टीपल लोगों ने ऑब्जर्वेशन ली, एंड वी हैव टेकन द एवरेज ऑफ दोज वैल्यू, सो दैट इज़ क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. देन फ्रॉम देयर वी विल सी कि हाउ मच इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्व वैल्यू एंड अ ट्रू वैल्यू. कितना वेरिएशन है हमारा, कितना डेविएशन है हमारा ट्रू वैल्यू और उसमें हमारा ऑब्जर्व वैल्यू में. एंड
फिर हम कहेंगे कि इतना डेविएशन है हमारा, तो हम लोग एक क्वांटिफाई कर देंगे उस डेविएशन को कि 1 प्लस माइनस 0.3 और 0.2 इट इज़ माई डेविएशन, इतना डेविएशन हमारे एक्सेप्टेबल है और मेरी 99% ऑफ माई ऑब्जर्वेशन विल कम इन दिस वैल्यू। तो मैंने क्वांटिफाई कर दिया अपने एरर को, ठीक है। सो वन थिंग इज एरर इज इनएविटेबल, you cannot make error zero, it has to come, it has to be there. So the best thing is to quantify your error within a permissible range, so that in whenever you are working on a relationship to calculate certain physical quantity, in that आपका error propagation जो होगा वो within the range रहेगा, ठीक है। So next is why we need to, we have already discussed this thing, but we'll just go through it. Why we need to study errors. Need to study error is to see how reliable is a result and quantifying the error. Suppose यहाँ पे अगर मेरा ये वैल्यू आ रही है 1 minus 0.5 kg, so this is not reliable. This is going up to plus and minus 50% of the true value, so this is not reliable. But this value, it is close to my true value, so it is a reliable number. So error will give you the reliability in the result. Second is it will help you in improve the measurements. How it is going to help you in improving the measurement? Suppose you do the measurement, you see okay the error is coming quite the differences. Suppose you measure that this deviation is coming quite big. This is my true value, this is my observation 1, this is my observation 2, this is my observation 3. So you see there's a large deviation coming in. So you try to understand, you accept that the error is coming, you try to understand why the error is coming. When you try to understand why the error is coming, then you work on reducing this error. To reduce this error, maybe you come up with different technique, maybe you come up with different instrument to reduce this error. So that's how the error reduction process will go on. So the first thing is to accept that error is inevitable, to know error and to go along with the error, so that in future we will reduce the error by designing more precise instruments. Okay, more precise instruments. Now why we need to reduce the error? Reducing error, we're definitely going to reduce our wastage and it is going to increase the efficiency of our measurements. So that's why we have to reduce error. So that's why the study of error is quite important. Next we move on to the next topic is accuracy and precision. So in the accuracy, in the error, here comes the accuracy and precision. Two important key terms are there. So what do you say? Okay, this result is accurate, this observation is accurate, or how do you say okay, this observation is precise? So we'll see through this dart board. So suppose this is my dart board. Okay, so this is my bullseye center. Okay, this is, you say it's a bullseye center, it is my true value. Okay, now I see के observation ये मैंने hit यहाँ पे किया, 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 ठीक है, I have hit on all those places. So it is very close to my true value, it is very close to my true value. So it shows that it shows the accuracy of my observation कि जितनी close मेरी true value से होगी, how close my measured value is my actual value, that shows the accuracy of my result. So जितना मैं bullseye के close में रहूँगा, यहाँ पे मेरा spread है वैल्यूज़ में ऑब्जर्वेशन की, बट मैं बुलसाई के बिल्कुल पास में हूँ, ट्रू वैल्यू के पास में हूँ, तो दैट इज़ माई हाई एक्यूरेसी रीजन. नाउ सपोज आई टेक दिस सपोज सेकेंड मैंने ये वाली रीडिंग्स ली, सपोज मेरी ऑब्जर्वेशन ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, सो ये दिस इज़ क्वाइट फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू, सो दिस इज़ नॉट एट ऑल एक्यूरेट, थोड़ा दूर है. बट सेकेंड थिंग इज़ कि इसकी जो विद इन अपने आपस में जो डिफरेंसेस हैं, ये आपस में जो डिफरेंसेस हैं दैट इज़ क्वाइट नियर. यहाँ पे थोड़े स्प्रेड ओवर थे ऑब्जर्वेशंस, ठीक है, यहाँ पे जो मेरी ऑब्जर्वेशन है दिस इज़ क्वाइट नियर ऑब्जर्वेशंस, वेरी 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 क्लोज नियर ऑब्जर्वेशन, बट एक्यूरेट पॉइंट से थोड़ा दूर है ये. सो प्रिसिशन इज दिस इज़ मोर प्रिसाइज कि आपस में ऑब्जर्वेशन बहुत क्लोज हैं उनकी, बट दैट इज़ फार फ्रॉम द एक्यूरेसी, दैट इज़ फार फ्रॉम द ट्रू वैल्यू. बट एक्यूरेसी में क्या होता है कि दैट इज़ नियर टू योर ट्रू वैल्यू, बट ऑब्जर्वेशन में भी ऑब्जर्वेशन कैन बी अवे. ओके, और एक नेक्स्ट टेबल देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे कि एक्यूरेसी भी है उसमें, प्रिसिशन भी है उसमें, और इसमें क्या है हमारा एक्यूरेट है बट प्रिसाइज नहीं है, यहाँ पे प्रिसाइज है एक्यूरेट नहीं है. तो अब हम एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं कि एक्यूरेसी की डेफिनेशन है कि वो कितना क्लोज है मेरी ट्रू वैल्यू के, जितना क्लोज ट्रू वैल्यू के होगा, सो दिस ऑब्जर्वेशन इज़ मोर क्लोज टू ट्रू वैल्यू, सो दिस इज़ मोर एक्यूरेट देन दिस ऑब्जर्वेशन. ठीक है, नाउ दीज टू ऑब्जर्वेशन is less precise than these two observation.
ठीक है, ये दोनों ऑब्जर्वेशन आसपास हैं, ठीक है, ये मोर प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन देन दीज टू ऑब्जर्वेशन, राइट। सो प्रिसीशन क्या होता है मेरा, मेजरमेंट विद ईच अदर, अपने आपस में कितना डिफरेंसेस है हमारे मेजरमेंट में, ठीक है, ऑल्दो इट इज़ अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू। प्रिसीशन इज हाउ दे आर ग्रुप टुगेदर। सो मेरे जो ये स्प्रेडेड एरर्स आते हैं, जितने भी दूर दूर से एरर्स आ रहे हैं, मतलब ट्रू कोई इसके अराउंड है बट वैल्यू थोड़ी स्प्रेड ओवर है, ठीक है, वैल्यू स्प्रेड ओवर है, दिस कम्स ड्यू टू द रैंडम एरर। तो दिस इज़ ऑल रैंडम, यू कैन नॉट डिफाइन देम, ओके ये इस वजह से इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी की वजह से आया या ह्यूमन बायसनेस की वजह से आया है, तो यू कैन नॉट डिफाइन दैम। बट ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे खूब सारा प्रिसीशन आ रहा है, बट दैट इज़ अवे फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू, दैट इज़ अवे फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू और द ट्रू वैल्यू। ये जो आ रहा है दैट इज़ विद इन एक डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में थोड़ा दूर है, तो देन वी कैन से इट इज़ ड्यू टू सिस्टमेटिक एरर। कोई ना कोई प्रॉब्लम है इसमें कि या तो कैलिब्रेशन में एक दिक्कत है, ठीक है, तभी ये यहाँ पे एक साथ वैल्यूज़ आ रही हैं, या ये वैल्यू यहाँ पे ट्रू वैल्यू यहाँ पे सारी इकट्ठी हो रही हैं। तो वी कैन से देयर इज़ अ बायसनेस इन ह्यूमन नेचर के कंटिन्यूसली, या तो ही इज़ कंटिन्यूसली टेकिंग द रीडिंग्स फ्रॉम द लेफ्ट साइड ओनली, सो एक्यूरेसी से दूर आ रही हैं बट सारी आसपास आ रही हैं, ठीक है। और यू कैन से कि यू आर रीडिंग यू कीप योर क्लॉक, आपने अपनी क्लॉक 10 मिनट आगे रखी हुई है, तो जितनी भी आपकी रीडिंग आएगी वो 10 मिनट आगे आगे की रीडिंग बताएगी, तो रीडिंग सारी क्लोज हैं बट ऑल आर अवे फ्रॉम द एक्यूरेसी, ऑल आर अवे फ्रॉम द एक्यूरेसी। सो दीज आर द सिस्टमेटिक एरर के एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में है बट सारी वैल्यूज़ बहुत क्लोज हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में है, तो दिस इज़ ऑल्सो सिस्टमेटिक एरर, एक डायरेक्शन में है बट सारी वैल्यूज़ क्लोज हैं। सेम वे ये जो है, ये सारे जो है रीडिंग्स सिस्टमेटिक एरर है क्योंकि ट्रू वैल्यू से दूर है, ठीक है, या तो इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड नहीं है या ज़ीरो एरर है, जैसे हम लोग वर्नियर कैलिपर या स्क्रू गेज में देखेंगे ज़ीरो एरर है। यहाँ पे ऑलरेडी एक ज़ीरो एरर की वजह से एक करेक्शन हमें एक ऑलरेडी एक्सेस और लेस वैल्यू हमारे को मिल रही है, जिसकी वजह से हमारी ऑल द वैल्यूज़ आर लाइंग देयर, ठीक है। So I hope this accuracy and precision is clear. So one more table we are going to go through where we are going to see four things के high accuracy high precision, high accuracy low precision, low accuracy high precision और low accuracy low precision। एक टेबल के अंदर देखते हैं। सपोज मेरी ट्रू वैल्यू है चारों केसेस में 100, पहली तीन ऑब्जर्वेशन आ रही है 100, 99, 101। सो दिस इज आपस में भी क्लोज है एंड दैट इज़ ऑल्सो क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, ठीक है। तो ये वाला केस हो गया, या आपने ये यहाँ पे, और ये आपस में भी क्लोज हैं और ये क्लोज टू ट्रू वैल्यू है, ठीक है। सो दीज आर दिस ऑब्जर्वेशन, दिस वी कैन से हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रिसीजन। सेकेंड इज माई ऑब्जर्वेशन इज 100, 97, 102। तो यहाँ पे दैट इज दिस इज आई कैन से क्लोज टू माई एक्यूरेसी बट आपस में बहुत दूर दूर है, तो इसके अंदर कुछ रैंडम एरर है, देयर आर सम रैंडम एरर इन दिस, आई कैन से दिस इज हैविंग सम रैंडम एरर क्योंकि आपस में दूर दूर हैं बट क्लोज टू एक्यूरेसी हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज माई third observation is 95, 95, 95. This is low accuracy and high precision. Why there's a low accuracy? Because this is my bullseye और ये तीनों यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, ऑल द थ्री ऑब्जर्वेशन आर हियर बट दिस इज अलॉन्ग वन डायरेक्शन। ये यहाँ पे शो कर रहा है कि आपस में वैल्यू कोई डिफरेंस नहीं कर रही बट लाइक काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन से पहले का ही कुछ एरर है, लाइक ज़ीरो एरर है क्रिएटेड है या कैलिब्रेटेड इंस्ट्रूमेंट का एरर क्रिएटेड है, तो एक डायरेक्शन में ही सारी वैल्यूज़ दिखा रहा है या इस डायरेक्शन में, बट सारी वैल्यूज़ ओवरलैप कर रही हैं, बहुत क्लोज हैं। तो ये वी कैन से इट इज़ हाईली प्रिसाइज बट लो एक्यूरेसी, सो दिस शोज अ सिस्टमेटिक एरर। So this error can be easily rectified by knowing the problem, okay, why in one direction this error is coming, okay, this can be easily, but this error it is very much difficult to rectify. This is random error, this is very much difficult to rectify it, okay. Then the last one is low accuracy and low precision. So this is my bullseye, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ, एक ऑब्जर्वेशन यहाँ, सो दिस इज अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यू ऑल्सो एंड इट इज़ नॉट एट ऑल प्रिसाइज, दिस इज वैल्यूज आर नॉट एट ऑल क्लियर टू ईच अदर, नॉट एट ऑल क्लोज टू ईच अदर। ओके, आई होप एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन शुड बी क्लियर टू यू। सो नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं, विल सी द नेक्स्ट टॉपिक इज एरर्स इन मेजरमेंट्स, हाउ डू वी कैलकुलेट द एरर्स इन मेजरमेंट्स। ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस, ये चीज़ ज़रूर याद रखना कि जितना प्रिसाइज वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो दैट शोज़ अगर ये अवे फ्रॉम
अवे फ्रॉम ट्रू वैल्यू है बट प्रिसाइज है, दैट शोज अ सिस्टमेटिक एरर. Systematic error, that shows a systematic error. Now we'll go in the errors in measurement. In errors in measurement, so as we all know, measurement is all a comparing process. We compare the things with the basic standard quantity. ठीक है, if we have to do the measurement of a length, measurement of a mass, we measure it with some standard quantity. So suppose we take the length of this rod and this is my standard quantity. So we ask many people, okay, you take and give me the length of this rod. So everyone gives me different reading. So one has given me this reading, one has given me this reading, one has given me, so everyone has given me different reading, but my true value is this. So अब मेरे को 3 तरीके के एरर निकालते हैं हम लोग मेजरमेंट में. वन इज़ माई एब्सोल्यूट एरर, सेकंड इज़ माई रिलेटिव एरर, थर्ड इज़ माई रिलेटिव परसेंटेज एरर. तो हम लोग प्रोसेस देखते हैं कि हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दोज थिंग्स. सो रिलेटिव एब्सोल्यूट एरर, जो मेरा एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, वो होता है कि सपोज ये मेरा ट्रू वैल्यू है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रू वैल्यू ये सारी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इन ऑब्जर्वेशन से आई विल कैलकुलेट द ट्रू वैल्यू. ट्रू वैल्यू मेरी ये आ गई. देन आई विल कैलकुलेटेड द डिस्टेंसेस, the absolute distances from this true value, and I take the mean of this absolute distances from this mean value. Okay, so now here we'll see it in the mathematical form. So absolute error कैसे calculate करते हैं. First of all we'll calculate the true value. True value कैसे calculate करेंगे. Suppose मैंने किसी फिनोमेना की ऑब्जर्वेशन ली, A1 A2 A3 अप टू AN तक मैंने ऑब्जर्वेशन ली. सो नाउ ट्रू वैल्यू जो कि मीन वैल्यू होगी वो कैसे निकालेंगे. दिस इज द अर्थमेटिक मीन वी आर गोइंग टू टेक. We take the sum of all this and divide it by n, total number of observation. This is my true value. So this is my arithmetic mean. Now I have to calculate the how distance are there, how observations are distant from my true value. तो यहाँ पे मेरी true value माइनस पहली observation, that is my first के मेरा कितना distance है, कितना deviation है from the true value. Then delta A2 AM minus second observation up to AN up to the last observation, that is mean value minus the last observation. So this way I'll calculate all my differences in this distances. So this can be both positive, negative, but we have to calculate के उसमें दूरी कितनी है. So we will take just the absolute value. So यहाँ पे calculation में हम लोग will take the mean absolute value of all this. So A1 A2 up to AN divide by N. So this comes as a mean absolute error for me. Okay, this is my mean absolute error. So first I have lot of observation. So कैसे इसको अप्रोच करना है किसी भी मेजरमेंट को. सपोज मैंने मेजरमेंट ली किसी चीज़ की, आई सपोज आई टेक द लेंथ मेजरमेंट. सो लेंथ की मेजरमेंट लेने के लिए मेरे पास आई टेक मल्टीपल ऑब्जर्वेशन. उस मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को लेके पहले मैंने उसका अर्थमेटिक मीन लिया. फर्स्ट आई हैव टेकन द अर्थमेटिक मीन. पहले मैंने मल्टीपल ऑब्जर्वेशन ली, फिर मैंने उसका अर्थमेटिक मीन लिया. ठीक है, फिर मैंने देखा कि हर एक ऑब्जर्वेशन मेरी कितनी दूर है अर्थमेटिक मीन से. ठीक है, उसका मैंने मॉड लिया और फिर उस मॉड को लेने जो मैंने मॉड लिया है डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन, उसका मैंने फिर मीन निकाल लिया. दैट इज़ माई मीन एब्सोल्यूट एरर. राइट, दैट इज़ माई मीन एब्सोल्यूट एरर. नेक्स्ट इज relative error. Next is my relative error. So relative error is nothing but your mean absolute error divided by your true value. Relative error is mean absolute error divided by true value. True value फिर again the same way, आपके पास observation, you have been asked to take the measurement of some physical quantity. तो आपने क्या किया, आपने उस physical quantity की multiple observation ली, A B C D E F G H multiple observation ली. सपोज टाइम पीरियड निकालना है, आपने किसी पेंडुलम का मास निकालना है या कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी निकालनी है, टेक द ऑब्जर्वेशन. पहले उस ऑब्जर्वेशन का मैंने अर्थमेटिक मीन ले लिया, विच वी कॉल इट एज अ ट्रू वैल्यू. ठीक है, विच वी कॉल इट एज अ ट्रू वैल्यू. देन अब मैंने देखना है कि मेरी हर एक ऑब्जर्वेशन कितनी दूर है उस ट्रू वैल्यू से. वो कैसे निकालेंगे हम लोग, वी टेक द मॉड. वी डोंट टेक द नेगेटिव और पॉजिटिव डिफरेंसेस, वी जस्ट टेक द मॉड. हमें बस डिस्टेंस देखना है कितना दूर है. ठीक है, वहाँ से. तो यहाँ से हम लोगों ने देखा उसकी मॉड की वैल्यू ट्रू वैल्यू माइनस जो भी मेरी ऑब्जर्वेशन आ रही है. ठीक है, वो कितना दूर है, आई विल टेक द मॉड ऑफ दैट. एंड देन जब मैंने वो डिस्टेंसेस देख लिए कितना दूर है वो ट्रू वैल्यू से, देन आफ्टर दैट आई विल टेक द
I'll take the mean of that. So that is my mean absolute error. जब मेरा mean absolute error आएगा, I'll divide that by true value. This is my relative error. Now, if I multiply that by 100, that will give me the percentage error. If I take the mean absolute error divided by my true value into 100, and this will come as my percentage error, right? So next we will move on to propagation of errors. So propagation of errors, suppose हम लोग how the errors got propagated means कि error amplify हो जाते हैं whenever we go into some mathematical arithmetic operations जब भी होते हैं हमारे, और we know that for every natural phenomena वो आपस में physical quantities relate करती हैं through some arithmetic operations. So for instance, if I take the kinetic energy, how it is related, half mv square. यहाँ पे kinetic energy is a physical quantity which is depending on mass and which is depending on velocity. अब आपने mass को पहले measure किया, you measure the mass and you measure the velocity. Now measuring the velocity में आपका कितना error आया है और measuring the mass में आपका कितना error आया है, then you take that error. अब वो दोनों error जब आप यहाँ पे put करेंगे, it is a multiplied operations, multiply arithmetic operation, तो that error will get amplified in your kinetic energy. So that is what we call a propagation of errors. So during calculation, how your errors got combined. Okay, so it is like के आपके input में जो कि आपके physical quantities हैं, input में like here input quantities are mass and v, input में कितना error है and वो carried away in the output किस तरीके से हो रहा है, that is what is the propagation of error. So error in the final results comes from two things. One is from the individual measurements. So m और v की जो भी measurements हैं, इन दोनों के बीच में कितना error है. अगर इसमें ज़्यादा error है, इसमें कम error है, या इसमें ज़्यादा error है, इसमें कम error है, तो दोनों पे डिपेंड करता है. प्लस उसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन कैसा हो रहा है. सपोज इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन स्क्वायर का हो रहा है, तो वी हैव टू सी कि इसमें एरर कितना एकोमोडेट कर सकते हैं हम लोग. एम में इट इज़ अ पावर ऑफ वन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में पावर ऑफ वन हो रहा है, तो वी हैव टू सी कि हाउ मच वी कैन एकोमोडेट, के किस पे हमारे को ज़्यादा फोकस करना है. अगर हमारे को सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी एफिशिएंट बनानी है, ठीक है, अगर हमारे को एक एक्यूरेट फिजिकल क्वांटिटी चाहिए, तो मेरे को देखना पड़ेगा मेरे को किस में स्पेसिफिकली एक्सेस एफर्ट डालनी है टू कैलकुलेट टू मिनिमाइज द एरर. ठीक है, यहाँ पे विल सी इट इन द कमिंग सेक्शन के हाउ वी हैव टू सी के how the power affect the physical, how the power affect the final result in your error. So we will see it one by one how the arithmetic relation is been linked. We'll go one by one कि किस तरीके से अगर अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है तो एरर मेरा कैसे आउटपुट में प्रोपोगेट हो रहा है थ्रू द इनपुट एरर्स. ठीक है, पहले हम देखते हैं एरर इन सम. अगर मेरा एरर इन सम मीन्स कि मेरे दो इनपुट वेरिएबल हैं ए एंड बी, उसके अंदर कुछ एरर है और उनके सम से मेरा आउटपुट आ रहा है, तो थ्रू सम जो आउटपुट में फाइनल एरर कैरी फॉरवर्ड हो रहा है वो कितना हो रहा है. ठीक है, सो हेयर द ऑपरेशन इज ए प्लस बी. मेरा ए में एब्सोल्यूट एरर आ रहा है डेल्टा ए, वो सेम प्रोसेस से हम कैलकुलेट करेंगे. मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेंगे, एक ही ट्रू वैल्यू निकालेंगे, मीन एब्सोल्यूट डिस्टेंसेस लेंगे, उसका फिर फर्दर मीन ले लेंगे, दैट विल गिव अस द एब्सोल्यूट एरर ऑफ ए. ठीक है, सेम वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर ऑफ बी. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द आउटपुट, दैट इज द टोटल एरर इन दिस समेशन, इन दिस समेशन ऑफ ए प्लस बी. सो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा मेरा, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू इन दोनों के एब्सोल्यूट एरर का इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर का सम. दैट इज माय मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर इन द आउटपुट इन द एक्स क्वांटिटी. सो डेल्टा एक्स में कितना मैक्सिमम एरर आ गया, द समेशन ऑफ इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर. अगर मेरे को परसेंटेज एरर निकालना है, देन आई विल टेक इट एज अ रिलेटिव डेल्टा एक्स ओवर एक्स इंटू 100. if I have to take the percentage, or if I have to take the only fractional, so delta x over x maximum error divided by the this x a plus b, right? This is my error and sum. Error and sum में just remember maximum error is we add both absolute error of both अगर दो quantities हैं तो दोनों की quantities का error add हो जाएगा. Next is my error in difference.
सो एरर इन डिफरेंस में क्या होता है, सेम वे हमारा जो एरर प्रोपोगेट होता है, टोटल मैक्सिमम एरर, दैट इज़ ऑल्सो समेशन ऑफ बोथ, दैट इज़ ऑल्सो समेशन ऑफ इंडिविजुअल एरर्स. सो अगर ए में मेरा ए में जो एरर है मेरा डेल्टा ए है, बी में एरर डेल्टा बी है, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा मेरा एक्स इजिकल टू ए प्लस बी में, उसमें जो एरर आएगा दैट इज़ डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, राइट. सो हेयर ऑल्सो वी डू द समेशन ओनली. और अगर मेरे को इसका परसेंटेज एरर चाहिए, परसेंटेज एरर विल गो डेल्टा एक्स ओवर एक्स, जिसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू मेरी आएगी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी डिवाइडेड बाय एक्स इज ए माइनस बी. So this is my relative error. If you multiply this by 100, this will become a percentage error. So next is we'll see how the error got propagated when we do a arithmetic operation of product multiplication. So multiplication में ए और बी मेरी दो फिजिकल क्वांटिटीज़ है, उन दोनों को मेजर किया एंड वी हैव गॉट ए के अंदर एरर है ए इज इक्वल्स टू डेल्टा ए एरर है, बी के अंदर जो एरर है डेल्टा बी है. सो हाउ दिस इंडिविजुअल एरर गॉट प्रोपोगेटेड? सो हेयर द एरर गॉट प्रोपोगेटेड थ्रू fractional values, not through the absolute value. This we can calculate, you can easily calculate, you can do it कि x में कितना चेंज आ रहा है अगर मैं a प्लस डेल्टा ए कर दूँ इंटू बी प्लस डेल्टा बी कर दूँ, ठीक है. तो यहाँ से इसको ओपन अप कर लेंगे ब्रैकेट को, और डेल्टा ए की जो भी मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म आएगी उसको हम जीरो रख देंगे क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू आएगी, और फिर इन सारी टर्म्स को x से डिवाइड कर देंगे. x का मतलब हो गया एक्स इज इक्वल्स टू ए बी, इससे डिवाइड कर देंगे, देन फाइनल रिजल्ट इज दिस वन, विल गेट दिस रिजल्ट ओनली. ओके, सो विल सी द फाइनल रिजल्ट इज द फ्रैक्शनल एरर आएगा हमारे पास, जो फाइनल रिजल्ट में आएगा दैट इज डेल्टा एक्स जो ओवर एक्स, एरर इन एक्स ओवर एक्स, वो क्या वैल्यू आएगी, प्लस माइनस डेल्टा ए ओवर ए, फ्रैक्शनल एरर ऑफ ए प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ बी. जो दोनों के इंडिविजुअल फ्रैक्शनल एरर होंगे उनका समेशन इसमें ओवरऑल फ्रैक्शनल एरर ऑफ एक्स. सेम वे इन द डिवीजन होगा, डिवीजन में भी सेम होगा कि फ्रैक्शनल एरर ही निकालेंगे हम लोग, इन दैट ऑल्सो विल हैव द फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल, फ्रैक्शनल एरर ऑफ इंडिविजुअल फिजिकल क्वांटिटीज ही, उसके समेशन से विल गेट अ overall fractional error in the division, in this division, right. So this and this, right. So next is if the error, if in the arithmetic operation we have some powers, so x is a raised to power n, b raised to power n. अगर इस physical quantity का delta a is my error, इस physical quantity का delta b, तो how it is going to get मैनिफेस्टेटेड इन द आउटपुट, ये देखते हैं. तो दैट अगेन इज द फ्रैक्शनल एरर आएगा आउटपुट में, वो इसकी वैल्यू आएगी, वी टेक इट एन डेल्टा ए बाई ए प्लस जो भी पावर होगी एम डेल्टा बी बाई बी. दिस इज माई रिजल्ट. सो अगेन हमने देखा था ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर. अगर मैं काइनेटिक एनर्जी में देखूँ एरर, सो इट विल कम काइनेटिक एनर्जी k is equals to delta m over m plus 2 times, because पावर है 2 times delta v over v. so जो v के अंदर जो एरर होगा that got multiplied 2 times, तो that is having 2 times उसको जो आउटपुट फ्रैक्शनल एरर में इंक्रीज करने का. तो जितनी पावर इंक्रीज होगी वी हैव टू बी वेरी मच कॉशियस इन कैलकुलेटिंग दैम, बिकॉज उसके अंदर जो प्रोपगेशन होता है error का in the output it is quite high, so we have to be very much cautious when we are dealing with the powers. और powers जिसकी power high है we have to be very much cautious while calculating its error. So this is clear. Propagation of error in the arithmetic calculations किस तरीके से होता है. एडिशन में अगर मेरा सम है, सम में, सब्सट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन में एंड डिवीजन में, हाउ द एरर गॉट प्रोपेगेटेड. सम और सब्सट्रैक्शन में वी हैव गॉट एब्सोल्यूट एरर का, दोनों के एब्सोल्यूट एरर में एडिशन आ जाता है सम और डिवीजन में, और प्रोडक्ट और डिवीजन में दोनों के रिलेटिव एरर में का सम हो जाता है. ठीक है, दिस इज रिलेटिव एरर, दोनों के रिलेटिव एरर का सम हो जाता है. और पावर में हम लोग क्या करते हैं, जो पावर होती है दैट विल ब्रिंग इट डाउन and we will do the multiplication with their individual relative errors. So this is अगर हमारे पास प्योरली ऐसे फंक्शन है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन ऐसा आ जाए कि x इज इक्वल्स टू
a raised to power n minus b raised to power m. So here it's a mixture of summation, subtraction and your power also. So in this cases we have to apply the differentiation. We will have to approach the problem with the differentiation, right? There's another important concept here is smaller the least count of any instrument, higher is the accuracy. ठीक है, ये कैसे देखते हैं कि सपोज यू टेक मीटर स्केल, इसका जो लीस्ट काउंट होता है 1 mm. ठीक है, सो दैट विल गिव यू अ वैल्यू, सपोज वैल्यू आई 20 mm. नाउ यू हैव अ वर्नियर स्केल, उसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 mm. यहाँ पे इट कैन टेक आउट द वैल्यू 20.1. ठीक है, थर्ड हो गया मेरा स्क्रू गेज का जो होता है 0.01 mm. ठीक है, इतना लीस्ट काउंट तक दे सकता है, तो इट कैन गिव यू द वैल्यू ऑफ 20.12. सो अब इसमें से विच वैल्यू इज़ मोर एक्यूरेट. ठीक है, जिसका सबसे छोटा लीस्ट काउंट है दैट वैल्यू इज़ गिविंग यू हायर एक्यूरेसी. ओके, दिस वन इज़ गिविंग यू हायर एक्यूरेसी, दिस वन इज़ गिविंग यू लेसर एक्यूरेसी. सो जिसका लीस्ट काउंट स्मॉल है, जिसका लीस्ट काउंट सबसे स्मॉल है स्क्रू गेज का, दैट इज़ गिविंग यू हायर एक्यूरेसी. सेम वे जिसका जितना बड़ा सिग्निफिकेंट फिगर होगा जिसमें, उतना उसका हायर एक्यूरेसी होगा. इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 4 सिग्निफिकेंट. तो दैट इज़ अ हाई एक्यूरेसी नंबर. that shows a higher accuracy. Higher significant, larger significant number, high accuracy. Small least count होता है, then it is a high accuracy. So I think it is clear up to here. So next we'll move on to some application of this theory जो भी हमने पढ़ी है, propagation in errors and errors. इसकी अब एप्लीकेशन देखते हैं कुछ एक क्वेश्चंस में हम. ठीक है, ये क्वेश्चन में दे रखा है हमारे को कि इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी द फॉर्मूला इज़ बीन यूज्ड फॉर द टाइम पीरियड. ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है हमारे को, एंड वी हैव बीन गिवन आर एंड आर की वैल्यू, आर कैपिटल आर स्मॉल आर, दीज आर द वैल्यूज गिवन. एंड देन इन 5 सक्सेसिव मेजरमेंट द टाइम पीरियड इज़ फाउंड टू बी दिस. ठीक है, एंड द लीस्ट count of the watch for the measurement is 0.01 second. So we have to calculate कि relative error in R, relative error in G and relative error in T. R सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है. relative error क्या होता है, डेल्टा आर ओवर आर. ठीक है, यहाँ पे इसमें relative error होगा डेल्टा टी ओवर टी, और इसमें होगा डेल्टा जी ओवर जी. अब हमें देखना है कि how these values are related. अब यहाँ पे डेल्टा आर और आर में देखेंगे हम कि डेल्टा आर और आर में हमारे को सिंपल दे रखा है, डेल्टा आर की भी वैल्यू दे रखी है, दैट इज़ दिस मच इज़ द एरर इन कैलकुलेटिंग आर, और दिस इज़ माय टोटल कैलकुलेशन ऑफ आर. तो मैक्सिमम हमारा एरर कितना आएगा, रिलेटिव एरर डेल्टा आर ओवर आर इंटू 100%, दिस 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 100, दैट इज़ 10%. नाउ सेकेंड इज आई हैव टू कैलकुलेट द दिस टाइम पीरियड, एरर इन द टाइम पीरियड. अब एरर इन द टाइम पीरियड में कैसे देखेंगे, मेरे को ऑलरेडी ऑब्जर्वेशंस दे रखी हैं यहाँ पे. ठीक है, तो आई गो एंड कैलकुलेट फर्स्ट मीन एब्सोल्यूट एरर, और फिर उसको मैं डिवाइड करूँगा, देन आई डिवाइड दैट बाय ट्रू वैल्यू, एंड दिस विल गिव मी डेल्टा टी ओवर टी द रिलेटिव एरर. दिस विल गिव मी रिलेटिव एरर ऑफ दिस विच इज़ बीन आस्क्ड के मेरे को रिलेटिव एरर ऑफ टी चाहिए. तो मेरी ऑब्जर्वेशन कौन कौन सी हैं, दिस 3 4 5 ऑब्जर्वेशन है. फर्स्ट आई टेक द मीन ऑफ दिस 5 ऑब्जर्वेशन. ये जो मीन लूँगा दैट इज़ गोइंग टू गिव मी द ट्रू वैल्यू. ठीक है, नाउ विद दिस ट्रू वैल्यू आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द हाउ फार ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज़ फ्रॉम दैट ट्रू वैल्यू. ठीक है, सो डेल्टा T1 मेरा हो गया ट्रू वैल्यू जो भी मेरी मीन के थ्रू आई. ठीक है, माइनस T1, और इसका मैं मॉड ले लूँगा सबका. सेम वे डेल्टा T2 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस T2, इसका भी मॉड ले लूँगा. सेम वे डेल्टा T5 इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस T5. ठीक है, नाउ आफ्टर दिस आई टेक द मीन ऑफ दिस वैल्यू डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2 डेल्टा Tn डिवाइडेड बाय 5. इसकी मीन वैल्यू ले लूँगा, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी मीन एब्सोल्यूट एरर. यहाँ से मेरा मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाएगा, दैट इज़ डेल्टा टी. नाउ दिस डेल्टा टी को आई डिवाइड दिस बाय ट्रू वैल्यू ऑफ टी. ट्रू वैल्यू क्या होगी मेरी, जो भी मैंने इन 5 ऑब्जर्वेशन से मीन लिया हुआ है, दैट इज़ माई ट्रू वैल्यू. देन आई विल डिवाइड डेल्टा टी बाई टी इंटू 100, दैट इज़ गोइंग टू गिव मी माई विच हैज़ बीन आस्क्ड के मेरे को परसेंटेज रिलेटिव एरर निकालना है. सो दैट फ्रॉम हेयर आई एम गोइंग टू गेट द परसेंटेज रिलेटिव एरर इन टी एंड टी.
So this you can do it on your own. It is not much difficult. The approach, I'll tell you the approach only. So calculations and all you will do. It is not like a always go ahead with the calculation, finish your calculation, complete करनी है, ठीक है. तो इसमें अप्रोच ये रहेगी कि मेरे को यहाँ पे आई हैव टू गिवन 5 ऑब्जर्वेशन दी हुई है. दैट मीन्स कैसे निकालना है. फर्स्ट आई हैव टू टेक द मीन से लेके मेरे को उसके इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन से डिस्टेंसेस, फिर उन डिस्टेंसेस का भी मीन निकाल के दैट इज गोइंग टू गिव मी मीन एब्सोल्यूट एरर. उस मीन एब्सोल्यूट एरर को आई डिवाइड बाई ट्रू वैल्यू. इट इज़ गोइंग टू गिव मी माई रिलेटिव टाइम पीरियड, relative error in time period, and then I multiply by 3. That is going to give me the percentage error. Now I have to calculate the error in G. Now I have to see कि मेरे पास R है, R and R is varying, and the another thing which is varying is this T. ठीक है. Now and how G is been related with these two, with this formula. So what I'll do, I'll just open up this formula. I'll square both the sides. T square is equal to 4 pi square, this and this. Now I'll take the G here and T square here, and then I apply the arithmetic rules on the propagation of error. Delta G over G fractional error. इसके अंदर मेरा यहाँ पे T square आ जाएगा, जो इसके अंदर आ जाएगा 5. If I'll take it here, G is equals to 4 pi square 7 R minus R divided by T square. तो हमने देखा था डिवीजन में क्या होता है हमारा, डेल्टा G by G इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा T by T प्लस ये मेरा पहले मेरे को इस पे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा. पहले जब मैं R माइनस आर को करूँगा, मेरे को R में भी मेरा एरर है, R में भी कैपिटल R में भी एरर है, स्मॉल r में भी. जब मैं दोनों को ऑपरेशन अर्थमेटिक ऑपरेशन करूँगा सब्सट्रैक्शन का, आई हैव टू फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन दिस अर्थमेटिक ऑपरेशन, एंड देन दैट आई हैव टू पुट इट हेयर. सो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरी डेल्टा R प्लस डेल्टा R, जो मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर आएगा इन दोनों में, डिवाइडेड बाय R माइनस R. गॉट इट. सो दिस विल बी माई fractional error in the G. If we multiply by 100, it is going to give you the percentage error in G. Clear? And this R has been given to me. Delta R is इस ऑपरेशन में सपोज हमने देखा था ना, R माइनस R में अगर मेरे को R की वैल्यू दे रखी है 60 प्लस माइनस 1, स्मॉल r की वैल्यू दे रखी है 10 प्लस माइनस 1. नाउ आई एम गोइंग टू डू द ऑपरेशन R माइनस R. ठीक है. और R माइनस R का अगर मेरे को इसका रिलेटिव एरर चाहिए. रिलेटिव एरर कैसे होता है मेरा, डेल्टा R प्लस समेशन करता हूँ मैं. अगर मेरा ऑपरेशन माइनस भी है, लेकिन मैं इनके जो एरर्स है, मीन एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने में, दोनों का समेशन करता हूँ. तो डेल्टा R ओवर R डिवाइडेड बाय R माइनस R. ठीक है. सो दिस वैल्यू ओनली आई हैव पुट इट हियर. डेल्टा R की वैल्यू मेरे को दे रखी है 1 mm, कैपिटल स्मॉल डेल्टा R की वैल्यू दे रखी है 1 mm. R और R की वैल्यू is also been given to me. Okay, delta T and by T I have calculated it from here. I put it here, and after putting all these values, I have got the fractional error in G. Right? It's clear. So next move on to the next question. So next question says that आई हैव एन ऑब्जेक्ट, उसका जो वेट है एयर में 5 और उसके अंदर जो एरर है प्लस माइनस 0.5, और उसका जो वेट है वाटर में वो है 4 kg एंड प्लस माइनस 0.5. ठीक है. ये इसका एब्सोल्यूट एरर है. मेरे को रिलेटिव डेंसिटी में मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर नहीं वाला है. पहले तो रिलेटिव डेंसिटी होती है क्या, रिलेटिव डेंसिटी इज़ योर वेट इन एयर डिवाइडेड बाय वेट लॉस इन वाटर. ठीक है. वेट लॉस इन वाटर, मेरे को एयर का वेट दे रखा है, वाटर का दे रखा है. अब लॉस कैसे निकालूंगा मैं, कि एयर में जितना वेट था मेरा, एयर में मेरा वेट इतना था, माइनस वाटर में जितना वेट हुआ, दैट इज़ व्हाट द लॉस ओनली. ठीक है. तो पहला मेरे को मैथमेटिकल ऑपरेशन करना है इसके ऊपर, a माइनस बी का, दिस माइनस दी का. तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस और माइनस का करूँगा, मेरे एब्सोल्यूट एरर ऐड हो जाएंगे. तो यहाँ पे मेरे दोनों एब्सोल्यूट एरर ऐड हो गए. ठीक है. दिस प्लस दिस आई हैव एडेड इट हेयर 5. ठीक है. सॉरी, नॉट दिस, दिस वैल्यू. So this is the absolute error in this and this. So this I have added it, और ये माइनस होगा because a माइनस b ऑपरेशन है. So 5 minus 4 is my 1. Okay. So this is my weight loss in water.
Now I have to calculate the relative density. Relative density is what? Weight in air. Weight in air is this, and this is my weight loss in water. Here I'll put this value. So now this is a division operation, and division operation में this is the operation. So यहाँ पे क्या होता है, relative error मैं कैसे निकालता हूँ, delta x over x is equals to delta a over a plus delta b over b. This is my relative error. So यहाँ पे how we are going to calculate? So delta a over a, so this is delta a over 5 plus 0.5, this divided by this. Here delta b is my 0.1, error in b is 0.1, and b value of b is this. I'll put the values, and here I got 1, 10, and final value is my 11%. So my relative density with error comes to be 5 plus minus 11%, this value. Got it? Here we have approached the problem in which we have to do two arithmetic operation. One is first a minus b operation, then we have done division operations. और दोनों में मेरा error कैसे propagate कर रहा है, because of this input, how it is propagating in the final result, it is 11%. Clear? So most of the questions में ये दिया होगा, आपके जो input होंगे उसमें कुछ error होगा, then you have to do some mathematical arithmetic operation, और arithmetic operation के बाद आपको ये calculate करना होगा output में कितना आ रहा है, ठीक है. और basically उसमें हमारे जो चार हमने देखे थे ऑपरेशंस, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवीजन, ये चारों ऑपरेशंस जो हमने देखे थे वहाँ पे, और पावर ए रेस्ट पावर एम और ए रेस्ट पावर एन, ये पावर वाले फॉर्मूला यूज़ होंगे. अगर मेरे पास मिक्सचर ऑफ बोथ हैं, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन दोनों अगर मेरे किसी इक्वेशन में है, देयर वी यूजुअली यूज़ आर differentiation. That in the coming questions we are going to see how we are going to apply the differentiation. Next question is कि there is experiment जहाँ पे मेरे को g निकालना है पेंडुलम का, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड दे रखा है, एंड आई हैव टू कैलकुलेट द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन g. ठीक है. सो इसके अंदर क्या क्या गिवन है मेरा, सिंपल पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में टाइम पीरियड दे रखा है मेरे को 50 सेकेंड दे रखा है फॉर 25 वाइब्रेशन. ठीक है. सो दैट मीन्स व्हेन इट्स डस 25 वाइब्रेशन, देन ड्यूरिंग दैट टू कंप्लीट इसके 25 वाइब्रेशन दे आर फिनिशिंग अप इन 50 सेकेंड. और नाउ इन दैट error in calculating time is my 0.1 second. This is my error in calculating time. Now मेरे पास लेंथ दे रखी है 100 सेंटीमीटर और error in लेंथ दे रखी है 0.1 सेंटीमीटर. ट्रू वैल्यू ऑफ g दे रखी है मेरे को, that is this 9.7720. So first we are going to see how the error got propagated in g because of this variation in small error in t and small error in l. How this is propagated in g, that we are going to see, and we'll get the value of g from there, and we'll take the we'll calculate the final percentage. So we'll see. So I know okay, time period of a pendulum is 2 pi root l by g. This is my time period of a pendulum. L में मेरे को पता है एरर है, T में मेरे को पता है एरर है. नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द एरर इन G. तो आई हैव टू टेक G ऑन द लेफ्ट साइड एंड आई हैव टू रिलेट इट विद L एंड T. तो ये कैसे होगा? सो आई जस्ट ओपन इट अप, आई टेक द G here and square this thing. So now G is now related with L and T like this. Now this is my pure division and power operation. Division, this is L divided by T square. This is division and power operation. Now यहाँ पे मैंने क्या किया, रिलेटिव एरर इन जी निकाला, डेल्टा जी बाई जी. इसमें क्या होगा, समेशन ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ एल प्लस दिस 2 टाइम्स ऑफ रिलेटिव एरर ऑफ टी. ठीक है. मेरे पास डेल्टा एल बाई एल की वैल्यू है, रिलेटिव एरर इन एल इज 0.1, हेयर इट इज़ 0.1 और टोटल, एंड हेयर इज एरर इन टी जो है मेरा 50 सेकेंड में जो उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड का. सो एरर इन टोटल 50 सेकेंड इट इज़ कमिंग एज 0.1 divided by 50 into 100. So total 50 second में this is my error. So here that's why we have put 0.1 divided by 50. So after doing the calculation we have got 0.5% of error. Okay. So now the value of G we have calculated it from here, because we have given
4 pi this in this value I put the value of L, I put the value of T. L की वैल्यू यहाँ पे कैसे आएगी? We are given L. टाइम पीरियड मेरे को कितना दे रखा है? टोटल टाइम पीरियड इज 50 डिवाइड बाई 25. टाइम पीरियड इज 2 फॉर पर ऑसिलेशन. यहाँ पे टाइम पीरियड आई टेक इट 2 एंड here the value of G dash is this 9.8596. और यहाँ पे मेरे को बोला गया है कि आई हैव टू कैलकुलेट द परसेंटेज एरर. परसेंटेज एरर मीन्स कि दिस ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. ओके, यहाँ मेरे पास ऑब्जर्व्ड वैल्यू कितनी आई है? दिस माइनस ट्रू वैल्यू जो मेरे को दे रखी है, दिस इज माई ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू. हियर आई हैव डन दिस. You'll do the calculation and you'll get the percentage error of this, right? So now sometimes क्या होता है ना कि हमारे को जैसे यहाँ पे तो आपको ये 50 सेकेंड में दे रखा है एरर 0.1 सेकेंड, ठीक है. कभी कभार होता है कि मेरे को ओवरऑल टाइम पीरियड में ही एरर इंडिविजुअल फ्रिक्वेंसी इंडिविजुअल ऑक्सीलेशन में ही टाइम पीरियड दे दिया जाता है. सपोज टी मेरा टाइम पीरियड है 2 सेकेंड का, ठीक है. इसी के अंदर ही ये वैल्यू दे रखी है 2.00 सेकेंड, ठीक है. अब मेरे को इसके अंदर डेल्टा टी इसके अंदर का जो मेरा रिलेटिव एरर आएगा. सो इफ़ आई हैव द टी इज इक्वल टू 2.00, इसके अंदर जो डेसिमल के बाद की ज़ीरो होती है ना, दैट शोज़ द प्रिसीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इतना प्रिसाइजली वो कैलकुलेट कर सकता है. दैट इज़ व्हाट द लीस्ट काउंट. ये इतना मिनिमम एरर हो सकता है इसमें, ठीक है. इतना मिनिमम एरर ये हो सकता है इसमें. दैट इज़ लीस्ट काउंट इज इक्विवेलेंट टू इतना ही एरर पॉसिबल है इसमें. इतना नॉट द मिनिमम, इतना ही एरर मैक्सिमम पॉसिबल है इसमें. तो यहाँ पे अगर मेरे को वैल्यू 2.0 दे रखी होती तो हेयर द लीस्ट काउंट प्रिसीशन इज 0.1, तो लीस्ट काउंट इज 0.1, ठीक है. हेयर लीस्ट काउंट इज 0.1. अगर मेरे को 2.00 दे रखा है, हेयर लीस्ट काउंट इज 2.01, ठीक है. प्रिसीशन अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, लीस्ट काउंट इज दिस, ठीक है. तो हेयर अगर मेरे पास टी की वैल्यू दे रखी है 2.00 सेकेंड. 2.00 सेकेंड का मतलब डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं मेरी? 2. सो दैट इज़ माई लीस्ट काउंट इज 0.01 एंड लीस्ट काउंट इज वॉज द एरर इन योर कैलकुलेशन, ठीक है. इससे कम तो नहीं आएगा, लीस्ट काउंट से तो कम नहीं आ सकता कुछ भी एरर. सो लीस्ट काउंट इज माई एरर. सो यहाँ पे टोटल टी में एरर जो आ जाएगा डेल्टा टी बाई टी, लीस्ट काउंट 0.01 divided by 2.00. So sometimes you have to calculate, you have to put this value here rather than giving in this way. समटाइम्स आपको जी कैलकुलेशन के लिए ये दे दिया जाता है कि टाइम पीरियड आपका सिंपल आपको बोल दिया जाता है टाइम पीरियड आपका 2.00 है. आपको ये नहीं दिया जाएगा यहाँ पे कि 50 सेकेंड 25 वाइब्रेशन और पर सेकेंड में आपका जो लीस्ट काउंट है वो 0.1 सेकेंड है. या तो इस तरीके से टी दिया जाएगा या इस तरीके से टी दिया जाएगा. अगर इस तरीके से टी दिया जाएगा देन योर 50 सेकेंड में कितना मैक्सिमम परमिसेबल एरर है 0.1. तो यहाँ पे आप एरर पुट करेंगे, यहाँ पे टोटल वैल्यू पुट कर देंगे. सो दिस वे यू कैलकुलेट डेल्टा टी बाई टी. अगर सेकेंड वे है हमारा कि आपको टी डायरेक्ट दे दिया 2.00 सेकेंड. सो यहाँ पे 2.00 सेकेंड अगर डायरेक्ट दे दिया तो माई द डेसिमल के बाद की प्लेसेस गिव्स मी माई कितनी उसमें प्रिसीशन है. प्रिसीशन कम्स फ्रॉम द लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट और यहाँ पे मेरा लीस्ट काउंट आ रहा है 0.01, ठीक है. दैट इज़ द मैक्सिमम परमिसेबल एरर क्योंकि इससे लीस्ट काउंट इज़ द मैक्सिमम परमिसेबल एरर, इससे कम नहीं हो सकता. सो आई पुट द वैल्यू हेयर ऑफ लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय 2.00. दैट इज़ माई डेल्टा टी बाई टी. समटाइम्स ये लेंथ जो होती है दिस लेंथ, सो पेंडुलम ऐसे होता है ना. समटाइम्स यू हैव टू ये पेंडुलम बहुत छोटा होता है तो यू कंसीडर एल इज इक्वल्स टू एल इफेक्टिव. समटाइम्स पेंडुलम बड़ा होता है, यू हैव टू कंसीडर द डायमीटर. यू हैव बिन डायमीटर, इस बॉब का डायमीटर भी दिया जाता है. सो देन इफेक्टिव लेंथ आपको जो लेनी पड़ेगी वो यहाँ से इसके सेंटर ऑफ मास तक की लेनी पड़ेगी. दैट इज़ एल प्लस डी बाई 2. डी इज़ माई डायमीटर. तो यहाँ पे आपको 2 अर्थमेटिक ऑपरेशन करने पड़ेंगे. पहले एल पे भी करने पड़ेंगे, एल इफेक्टिव में भी. यहाँ पे अगर एल में आपको एरर दे रखा है फिर डी में एक डिफरेंट एरर दे रखा है तो यू हैव टू डू वन अर्थमेटिक ऑपरेशन हेयर टू कैलकुलेट डेल्टा एल इफेक्टिव. डेल्टा यहाँ पे डेल्टा एल इफेक्टिव ओवर एल लेना है. यहाँ पे दिस वैल्यू एल इफेक्टिव ओवर एल. इसके लिए आपको यू हैव टू टेक द मैक्सिमम एरर इन डेल्टा एल प्लस you have to calculate the error in delta t divided by L plus d by 2.
दिस वे यू हैव टू कैलकुलेट डेल्टा एल इफेक्टिव बाय एल. कभी कभार होता है कि दैट वे यू हैव बीन गिवन, जहाँ पे भी आपको डायमीटर ऑफ द बॉब दिया होगा यहाँ पे आपको एल इफेक्टिव लेना है. एल इफेक्टिव में आपको एरर कैलकुलेशन के लिए एक और अर्थमेटिक ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, ये वाला, जिसमें आपको एल में भी कुछ यू हैव बीन गिवन एनी लीस्ट काउंट, और सपोज एल की वैल्यू आपको दे दी होगी 100.1. तो यहाँ पे जो एरर है दैट इज़ दिस एरर 0.1. या अगर ये मेरे को 100.02 दे दिया तो यहाँ पे जो एरर जो यहाँ पे एरर की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.01. जितना डेसिमल प्लेसेस तक है उतना प्रिसीशन है इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे जो लीस्ट काउंट आएगा ये आएगा. इसका लीस्ट काउंट कैन बी डिफरेंट, इसका लीस्ट काउंट कैन बी डिफरेंट. अगर डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से ले रहे हैं तो दोनों का डिफरेंट लीस्ट काउंट हो सकता है. दोनों का अगर डिफरेंट लीस्ट काउंट है तो दोनों का एरर डिफरेंट होगा, और दोनों के एरर को इस समेशन में प्रोपोगेट करके कितना एरर बनेगा दैट इज दिस वैल्यू, राइट. डेल्टा आर ओवर आर डिवाइड बाय आर प्लस आर. इसके थ्रू वी हैव गॉट एल इफेक्टिव, एंड दैट एल इफेक्टिव यू आर गोइंग टू पुट अप हियर. एल इफेक्टिव बाय एल, दैट एल इफेक्टिव यू आर गोइंग टू पुट अप हियर. सो देयर आर मल्टीपल वेरिएशन इन दिस सेट ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमने देख लिए. पहले तो आपको टाइम पीरियड इस तरीके से दिया जा सकता है, दूसरे में आपको लेंथ जो दी होगी सिंपल एल दे रखी होगी, या फिर बॉब का भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा डायमीटर, उसका सेपरेटली कैलकुलेट किया होगा तो उसका भी आपको एरर कंसिडर करना पड़ेगा, या फिर आपको टोटल टाइम पीरियड दिया गया होगा, बस उसमें आपको सिंपल टाइम पीरियड का वैल्यू दे दी गई होगी. यहाँ पे भी आपको लीस्ट काउंट लेके इसका रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा, राइट. सो देर आर फ्यू वेरिएशन इन दिस. सो इफ़ यू गो थ्रू दिस क्वेश्चन you could able to do all the variations. नेक्स्ट is कि मेरे को इट्स कॉल्ड अ सीयरली एक्सपेरिमेंट. इसमें मेरे को क्या होता है, यंग्स मॉड्यूलस फाइंड आउट करना होता है वायर का. यंग्स मॉड्यूलस, वी हैव टू फाइंड द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ ए वायर. यंग्स मॉड्यूलस क्या होता है कि हाउ स्टिफ एंड स्ट्रेची इज द मटेरियल. इट्स अ मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल के वो कितना अपने आप को रेजिस्ट कर रहा है किसी अपने एक एक्सटर्नल फोर्स के लिए, कि स्ट्रेच या स्टिफनेस उसमें कितनी है. ठीक है, दैट इज़ व्हाट द यंग्स मॉड्यूलस रिप्रेजेंट. सपोज फॉर इंस्टेंस रबर है उसका लो यंग्स मॉड्यूलस है, बिकॉज इफ़ यू अप्लाई सेम फोर्स ऑन रबर एंड स्टिल रबर ज़्यादा स्ट्रेच करेगी. ही इज़ हैविंग लेस लो यंग्स मॉड्यूलस. स्टील है उसका हाई यंग मॉड्यूलस है, इट विल नॉट लेट द एक्सटर्नल फोर्स स्ट्रेच द स्टील, सो इट इज़ हैविंग द हायर, इसका यंग्स मॉड्यूलस ज़्यादा है. सो एक क्वेश्चन इस पे देखते हैं सीरियल एक्सपेरिमेंट पे. तो हमारे को क्या दे रखा है, वी हैव बीन गिवन डायमीटर, ये चीज़ें नहीं दे रखी है हमारे को. ठीक है, वी हैव बीन गिवन जस्ट दिस वैल्यू, जस्ट दिस लेफ्ट साइड वैल्यू. ये इसका डायमीटर दे रखा है वायर का 0.050, ये कैलकुलेशन दे रखी है. तो नाउ वी नो कि इसकी 3 वैल्यू आफ्टर डेसिमल, सो दिस इज़ द प्रिसीजन. सो इतना प्रिसीजन है इसका, तो दैट मीन्स इसका लीस्ट काउंट होगा 0.001. इतना लीस्ट काउंट तक होगा तभी ये इतनी वैल्यू तक कैलकुलेट कर पा रहा है. तो आई कैन टेक कि दिस इज़ माई एरर, लीस्ट काउंट इज़ माई एरर. सो डेल्टा डी इन दिस इट इज़ कमिंग एज 0.001. ठीक है, सेम वे यहाँ पे क्या है 125. आगे कोई डेसिमल में मेरे पास प्लेसेस नहीं है, दैट मीन्स इसका लीस्ट काउंट होगा 1 mm. सो 1 mm, सो इट वी कैन कैलकुलेट 125 और 124 और 126. इट कैन नॉट कैलकुलेट द मिडिल वैल्यू. सो दिस इज द मैक्सिमम परमिसिबल एरर. कितना होगा इसमें 1. सो आई टेक 1. हियर आई हैव बीन गिवन मास कितना दे रखा है 20.0. सो यहाँ पे भी 0.0 के बाद एक डेसिमल वैल्यू तक दे रखा है, दैट मीन्स आई कैन कैलकुलेट 20.1 और 19.9. सो अगेन 0.1 is my least count. 0.1 is my least count. Right here in this case, so delta m is my error, is my error I can take maximum is 0.1. x जो मेरा एक्सटेंशन हुई है इसमें क्या होता है कि you have a rod and you pull it with some force, and now you calculate the Young's modulus, that is stress over strain, and one इनिशियल लेंथ इसकी x है, ये स्ट्रेच होके x प्लस डेल्टा x हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई. तो यहाँ पे जो यंग्स मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस क्या होती है, सपोज इसकी लेंथ इनिशियल लेंथ l है और फाइनल लेंथ हो गई इसकी l प्लस x. ठीक है, सो नाउ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया जो भी वायर का होगा, एयर एरिया, एंड देन आई विल टेक द एक्सटेंशन इन द रॉड डिवाइडेड बाय द इनिशियल लेंथ ऑफ द रॉड. दिस इज माई फॉर्मूला फॉर द यंग्स मॉड्यूलस. दिस इज व्हाट वी आर हैविंग इट हियर. सो यहाँ पे वर्टिकल रॉड है, इस पर केवल mg लग रहा है फोर्स. अपने वेट के थ्रू कितना इसमें एक्सटेंशन हो रहा है दैट वी आर गोइंग टू सी.
सो स्ट्रेस कितना हो गया, फोर्स ओवर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई डी स्क्वायर बाय 4। स्ट्रेन क्या है, उसमें एक्सटेंशन आया एल का, दिस मच इज एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन के अंदर मेरे को डेल्टा एक्स कितना निकालना है कि अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू दे रखी है, तो इट इज़ प्रिसाइज अप टू दिस, सो दिस इज़ माई एरर 0.001, दिस इज़ माई एरर। अब मेरे पास एरर सब एरर वैल्यूज आई हैव सीन एरर वैल्यूज फॉर ईच एंड एवरीथिंग। सो नाउ this is my Young's modulus. Now I'll take now everything is in my multiplication or division only, so I can directly apply my error propagation without using any differentiation. So delta y over y is what, delta y मेरे को पता है m में एरर है, g में कोई एरर नहीं है, d में एरर है, x में एरर है एंड l में एरर है, ये 4 मेरे पास है। तो यहाँ पे डेल्टा m और वी हैव सीन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सब जो एरर है रिलेटिव एरर सारे ऐड हो जाते हैं। विल डू दैट। डेल्टा एम बाई एम प्लस 2 टाइम्स हेयर इट इज़ रिलेटेड विद ट्वाइस द पावर ऑफ डी, सो 2 टाइम्स डेल्टा डी बाई डी, हेयर एक्स डेल्टा एक्स बाई एक्स एंड डेल्टा एल बाई एल। नाउ वी नो ऑल द वैल्यूज। डेल्टा एम की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज़ माई डेल्टा एम वैल्यू हेयर, एम की वैल्यू मुझे पता है, डेल्टा डी की वैल्यू मुझे पता है, दिस इज़ द वैल्यू हेयर, आई पुट द वैल्यू हेयर, डेल्टा एक्स की वैल्यू पता है, ठीक है। ये सारी वैल्यू आपको दी नहीं होंगी, बट आपको मेन कैलकुलेटेड मेजर्ड वैल्यू दी होगी। फ्रॉम हेयर यू आर गोइंग टू फाइंड कि उसमें मैक्सिमम एरर कितना होगा, दैट इज इक्विवेलेंट टू द लीस्ट काउंट। और वो कितना होगा, कितना प्रिसाइसली आपने मेजर किया, वो प्रिसाइसली कितना मेजर किया वो कैसे पता लगेगा, थ्रू द कितने डेसिमल प्लेसेस तक आपका वो मेजरमेंट वैल्यू दे रखी है, राइट। आपके पास सारी वैल्यूज हैं, यू पुट दिस वैल्यूज एंड यू कैलकुलेट द रिलेटिव एरर, द फ्रैक्शनल एरर इन यंग्स मॉड्यूलस। Now the next question is, you have to calculate the precision and accuracy in the experiment. Suppose वही टाइम पीरियड का एक एक्सपेरिमेंट है, उसके अंदर आपने 20 ऑसिलेशंस किए। पहले टाइम पीरियड देखा उसमें आया 39.6, दूसरी बार किया आपने उसमें देखा 39.9 टाइम पीरियड आया, तीसरी बार किया उसमें आया 39.5। सो 20 ऑसिलेशंस में मेरे पास टोटल टाइम पीरियड जो मेरे को क्लॉक ने दिया दैट इज़ 39.6, 39.9 एंड 39.5, ठीक है। सो सीइंग दिस नंबर इट इज़ शो कि जो क्लॉक है मेरी उसका लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड, ठीक है। इसको देख के मुझे पता लग रहा है कि लीस्ट काउंट इज 0.1 सेकेंड, सो दैट मीन्स उसमें जो एरर आएगा दैट इज़ अप टू 0.1 सेकेंड इट इज़ अलाउेबल। नाउ प्रिसीशन इज द लीस्ट काउंट एरर ऑफ, सो प्रिसीशन मेरे को निकालना, प्रिसीशन इज व्हाट इज द लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर क्या है इसमें, दैट इज दिस वैल्यू, कि अप टू दिस वैल्यू इट कुड एबल टू कैलकुलेट। सो ये यहाँ पे 39.6 ले सकता है, ये 39.7 ले सकता है, बट इट कैन नॉट टेक 39.62, ये बीच की वैल्यू नहीं ले सकता। तो इसमें जो एरर आएगा, अगर कोई भी वैल्यू मेरी सपोज 13 एक्चुअल वैल्यू सपोज मेरी 39.62 है, तो इधर इट कैन टेक दिस वैल्यू और दिस वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम कितनी ले सकता है, अगर मेरी 39.61 है, ठीक है, और इसने मैक्सिमम ले लिया 39.67 ले लिया, या 60 को इसने 7 कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू इसका जो बीच का जो डिफरेंस होता है दैट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन टेक। यहाँ पे वैल्यू है बट आपने कैलकुलेट ये वाली वैल्यू, ये ट्रू वैल्यू है बट आपने ऑब्जर्व वैल्यू ये ले ली, तो मैक्सिमम जो होता है लीस्ट काउंट वाला होता है, ठीक है। तो इसका कितना मैक्सिमम लीस्ट काउंट है, इसका कितना लीस्ट काउंट है 0.1, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल अ प्रिसीशन ऑफ अ इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, प्रिसीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द एक्यूरेसी। एक्यूरेसी दिखाता है कि मेरी ट्रू वैल्यू से कितना दूर वैल्यू है, मेरी जो कैलकुलेटेड मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से कितनी दूर है। मेजर्ड वैल्यू किसी को नहीं पता होती, वी जस्ट हैव टू टेक इट द मीन ऑफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। सो ट्रू वैल्यू यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करी। सो ट्रू वैल्यू मेरे पास तीनों की है, तीन ऑब्जर्वेशन लिए, 39.6, 39.9 एंड 39.5। इसका अर्थमेटिक मीन लिया दैट इज़ 39.7। अर्थमेटिक मीन को फिर देन आई विल सी कि मेरी जो ऑब्जर्वेशन है हाउ फार इज इट फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, just in the distance terms, and we'll take the mod of it. So true value minus t1 observation, this it is giving to give me 0.1, same way t2, same way t3। overall जो मेरा value mean absolute error आ रहा है that is 0.17, but the thing is जो least count है मेरा it is 0.1, I cannot go मोर देन 0.1 आएगा या 0.2 आएगा, 0.17 नहीं आ सकता। नाउ आई हैव टू डू द राउंड ऑफ दिस, दैट वी हैव सीन द सिग्निफिकेंट फिगर। राउंड ऑफ कैसे करते हैं कि जो वैल्यू मेरे को ड्रॉप करनी है, दिस वैल्यू सपोज दिस वैल्यू आई हैव टू ड्रॉप, दिस वैल्यू ड्रॉप करनी है, फर्स्ट आई हैव टू सी वेदर इट इज़ मोर देन 5 लेस देन 5। मोर देन 5 है तो पहले वाली वैल्यू को मैं 1 से इंक्रीज़ कर दूंगा, नाउ माई वैल्यू इज़
0.2. So मैंने 1 को यहाँ पे से +1 से इंक्रीज कर दिया, नाउ माई वैल्यू इज 0.2 सेकेंड. सो दिस इज द एक्यूरेसी ऑफ द अबव experiment measurement, sorry. Clear? So now we move on to the next question. Next question is we have been given R1 and R2 are the two resistances. We have to calculate the parallel equivalence, R equivalence parallel. R equivalence parallel. So R equivalence parallel का मुझे फॉर्मूला पता है. This is my formula for R equivalence. 1 divided by R equivalent is equals to 1 by R1 plus 1 by R2. इसको दो तरीके से कर सकते हैं. We'll see a different way. एक और तरीका है जो कि हमने अभी तक प्रोपगेशन ऑफ एरर में पढ़ा है उसके तरीके से. We'll convert each and every. अभी क्या है यहाँ पे, एक मेरे पास डिवीजन की भी टर्म है और प्लस की भी टर्म है. तो मैंने बताया जब भी मिक्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, प्लस और मल्टीप्लिकेशन वाले का, या प्लस और डिवीजन या माइनस और डिवीजन, तो इस केसेस में हम लोग डिफ्रेंशिएशन इज़ द बेस्ट प्रेफरेबल मेथड. नहीं तो आप इसको या तो पूरे मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में कन्वर्ट कर लो, तब कर सकते हो. वो कैसे करेंगे, आर इक्विवेलेंट आ गया R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2. अगर मैं इसको ओपन अप करूँगा दिस वैल्यू, अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे R1 इंटू R2 इंटू R1 प्लस R2 माइनस 1. अब ये तीनों मेरे मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट में आ गए. तो डेल्टा R1 बाय R1 प्लस डेल्टा R2 बाय R2 प्लस डेल्टा R1 प्लस R2 divided by R1 plus R2. So this way I can calculate the R equivalence. Another way is कि rather than going this way, so what we'll do the differentiation on both the sides. तो I'll just give you, हमने अभी तक बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ा, तो इसलिए अभी हमारे को डिफ्रेंशिएशन अगर आपको आता होगा ठीक है, नहीं भी आता हो तो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, हम लोग लेटर ऑन कवर करेंगे. अगर मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x, तो x को मैं अगर डेल्टा एक्स इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा डेल्टा वाई कितना इंक्रीज़ होता है, दैट इज़ व्हाट द डिफ्रेंशिएशन. अगर एक्स को मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा तो वाई में कितना थोड़ा सा इंक्रीज़ होगा, दैट इज़ व्हाट वी कॉल द डिफ्रेंशिएशन. सो डिफ्रेंशिएशन ऑफ कितना वाई में इंक्रीज़ हुआ, डी वाई इंक्रीज़ हुआ डेल्टा एक्स के इंक्रीज़ होने पे, तो द वैल्यू ऑफ दिस इज डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है, दिस इज़ माई फॉर्मूला. अगर मेरा 1/x है यहाँ पे, सो व्हाट वी डू, एक्स स्क्वायर एंड वी डू दिस, ये जो x है इसका मैं डिफ्रेंशिएशन करता हूँ dx. दिस इज़ माई, अगर मैंने x में dx चेंज किया तो मेरा dy कितना चेंज होगा, dx जो चेंज किया है dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर. ठीक है, ये याद रखना कि अगर मेरे को इस तरीके की टर्म है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास सेम इसी तरीके की टर्म्स है. ठीक है, दिस एंड दिस, ऑल थ्री टर्म्स आर लाइक दिस. तो मैं दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या होगा, इसका स्क्वायर इनटू इसमें जो भी चेंज है. ठीक है, इसमें क्या चेंज है, डी एक्स, सो इसका आएगा डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर. सेम वे डी आर इक्विवेलेंट डिवाइड बाई आर इक्विवेलेंट का होल स्क्वायर. इधर को करेंगे डी R1 डिवाइड बाई R1 का होल स्क्वायर, यहाँ पे करेंगे डी R2 डिवाइड बाई R2 का होल स्क्वायर. ठीक है, आप क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ से. आई नो दिस, यहाँ पे मेरे पास R1 की वैल्यू ये है, R2 की वैल्यू है, डेल्टा R1 ये है, डेल्टा R2 ये है. सो R1 मेरे पास ये है, आई विल पुट द वैल्यू R1 R2, सो एंड डिवाइडेड बाय दिस. सो आई विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट फ्रॉम हियर. आई कैन पुट दिस वैल्यू हियर R इक्विवेलेंट. सो यहाँ पे मैंने, अब मेरे को फ्रैक्शनल एरर निकालना है इसका. तो फ्रैक्शनल एरर इज़ व्हाट, डेल्टा R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट. ठीक है, यहाँ से मैं R इक्विवेलेंट इधर की साइड में जाऊँगा. ठीक है, आर इक्विवेलेंट इधर ले गया मैं. आर इक्विवेलेंट की मेरे को वैल्यू पता है, तो आई डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस. अब मेरे को डेल्टा आर की वैल्यू पता है 0.5. ठीक है, मैंने यहाँ पे 0.5 रख दी. R1 की वैल्यू मुझे पता है 10, इसका स्क्वायर ले लिया. सेम वे डेल्टा R2 की मेरे को वैल्यू पता है, दिस इज डेल्टा R2 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू मेरे को पता है दिस. सो आई पुट दिस वैल्यू एंड आई, आर इक्विवेलेंट मेरा यहाँ से आ जाएगा, दिस इज आर इक्विवेलेंट, एंड आई कैलकुलेट दिस फ्रैक्शनल एरर इन आर इक्विवेलेंट. ये सेम चीज़ मैं फोकल लेंथ वाले फॉर्मूला में भी कर सकता हूँ, 1/u माइनस 1/v. इस टाइप के जितने भी फॉर्मूला हो, कैपेसिटेंस में भी कर सकता हूँ. अगर कोई कैपेसिटेंस सीरीज में है तो 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2. सो ऑल दिस थिंग्स कैन बी अप्लाइड इन दिस सेट ऑफ फॉर्मूलाज. ठीक है, फोकल लेंथ का आगे हम एक आध क्वेश्चन देखेंगे. दिस इज क्लियर. सो अप्रोच है कि वेन एवर यू हैव अ मिक्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेशन प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन,
तो यहाँ पे या तो आप उसको टोटल मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो जैसे कि हमने देखा इसमें, या तो, और अदरवाइज यू अप्लाई अ डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट इज दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। यहाँ पे मेरे को क्या दिया हुआ है ना कि लेंथ ऑफ वेल निकालनी है मैंने, ठीक है, वो निकाल भी ली उसने लेंथ ऑफ वेल, बट सपोज लेंथ ऑफ वेल कैसे निकाले उसने पहले देखते हैं। यहाँ से एक स्टोन ड्रॉप किया, स्टोन गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ पे हिट किया, फिर यहाँ से साउंड रिटर्न करके आई, ठीक है। इसने क्या किया, लेंथ निकालने के लिए पहले टोटल टाइम मेजर किया यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ से टाइम मेजर किया, यहाँ से यहाँ तक आने में, यहाँ से वेलोसिटी ऑफ साउंड इसको पता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, दैट यू कैन कैलकुलेट थ्रू द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इक्वेशंस, वहाँ से कैलकुलेट करके यहाँ तक कितना टाइम लगा, प्लस यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा, दैट यू कैन कैलकुलेट, ठीक है। टोटल टाइम पीरियड, टोटल ट्रैवल टाइम यू कैन कैलकुलेट। फिर मेरे को जो दिया गया यहाँ पे कि मेरे को जो पूछा गया है कि डेल्टा एल में, डेल्टा एल बाई एल मीन्स कितना फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ होगा, कितना एरर इन लेंथ आएगा अगर जब मेजरिंग टाइम पे उसने टाइम में इतना एरर आया है उसके, तो अगर उसने टाइम में इतना एरर आया है तो एल में कितना एरर आएगा उसके। तो दैट मीन्स आई हैव टू समहाउ गेट अ रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड टी, ठीक है, आई हैव टू गेट आउट द रिलेशनशिप बिटवीन एल एंड टी। वो कैसे आएगी मेरी, सो आई नो कि टोटल ट्रैवल टाइम कितना होगा T1, ये नीचे आने वाला टाइम, एंड T2 इस ऊपर जाने वाला टाइम। नीचे आने वाला टाइम कैसे होगा, दैट इज इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे हम, S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ, सॉरी S इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे u मेरा 0 है तो s की वैल्यू मेरी आ जाएगी, s क्या है मेरा l इज इक्वल्स टू 1/2 gt स्क्वायर, जो नीचे वाले आने वाला टाइम है, तो t जो मेरा टाइम आ जाएगा दैट इज इक्वल्स टू 2l/g, √2l/g, दैट इज़ माई टाइम, जो नीचे आने का टाइम है √2l/g। ऊपर जाने का टाइम कितना होगा, ये लेंथ मैंने कैलकुलेट करी है इसकी l, ठीक है, दैट इज l। मुझे जो फाइनल रिजल्ट निकालना है वो ये निकालना है कि मेरा कितना फ्रैक्शनल चेंज इन l आया है व्हेन मेरा टाइम पीरियड में जो एरर आया है वो 0.01। सो अगेन यहाँ पे भी हमारे पास डिवीजन है, एडिशन है, तो बेस्ट वे टू गो अहेड इज विद द डिफरेंशिएशन। सो मैं डिफरेंशिएट करूँगा बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे dt, क्योंकि मेरे पास t एंड l आर रिलेटेड, t में कितना चेंज आएगा, सपोज t में अगर मेरा एरर ये है dt, तो मेरा l में कितना एरर आएगा, दैट आई हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। सो dt है, डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ मैं बोथ द साइड्स। अब यहाँ पे एक और डिफ्रेंशिएशन आपको देखना है, अगर मेरा l रेज़ टू पावर 1/2 का डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, अगर मेरा y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 1/2 दिया हुआ है, तो मेरा dy होगा x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस 1। यहाँ पे कितना आ गया, दिस वैल्यू इज no, I think no, I think I've been doing wrong. So root L का जो होगा L raised to power 1/2, so differentiation is y is equals to x raised to power 1/2 x raised to power minus 1/2, this is my differentiation, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/2 root x, ठीक है, this is my differentiation of x raised to power 1/2। तो यहाँ पे मैंने वही किया है, रूट एल यहाँ से अलग कर लिया, ये मेरा कांस्टेंट है, इसको मैंने बाहर निकाल दिया। सो आई विल डू द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड्स। व्हाइल डूइंग द डिफरेंशिएशन आई जस्ट हैव टू टेल यू कि y इज इक्वल्स टू x रेज़ टू पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन हाउ इट इज़ लाइक दिस। सो डिफरेंशिएशन में आई विल डू x रेज़ टू पावर 1/2 का, सो dy इज इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स x रेज़ टू पावर 1/2 माइनस 1, दैट इज़ 1/2 x raised to power minus 1/2 minus 1/2 into dx, 1/2 x into dx. So this is my differentiation of anything with a square root. So here यहाँ पे root l है, तो root l का differentiation मेरे पास आ जाएगा root l 1/2 root l
डी एल, दिस इज माई डिफ्रेंसिएशन ऑफ रूट एल, रूट टू बाई जी कॉमन आ गया, यहाँ पे डी एल का डिफ्रेंसिएशन डी एल हो गया एंड वी हो गया, ठीक है। नाउ आई डिवाइड बोथ द साइड्स बाई एल एंड आई टेक डी एल बाई एल कॉमन, यहाँ से मेरा डी एल बाई एल मैंने सपोज मैंने एल यहाँ पे इंटू वन बाई एल इंटू वन बाई एल, यहाँ पे डी एल बाई एल ये कॉमन ले लिया, यहाँ पे मैंने डी एल बाई एल कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जो मेरे अंदर बचा रूट टू बाई जी प्लस वन बाई टू, वन बाई रूट एल प्लस वन बाई वी, और यहाँ पे आई हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू डी एल बाई एल, डी टी की वैल्यू मुझे पता है दिस, एल की वैल्यू मेरे को दे रखी है 20, जी की वैल्यू मुझे पता है एल की वैल्यू 20 एंड वी की वैल्यू 300. आफ्टर पुटिंग ऑल दिस वैल्यू आई विल गेट द वैल्यू ऑफ डी एल बाई एल. Got it? I'll explain this one more time. I'll explain this one more time. So यहाँ से मेरे को कैलकुलेट करना है कि मेरा लेंथ में कितना वेरिएशन आएगा. अगर पहले मेरे को बोला गया टाइम पीरियड निकालना है यहाँ पे स्टोन का, जो यहाँ से ऊपर से गिर के नीचे गिरा, फिर उसकी साउंड ऊपर सुनाई दी, एको मेथड काइंड ऑफ ए थिंग, कि वो साउंड उसके ऊपर सुनाई दी, टाइम पीरियड निकालना है. तो जब कैलकुलेट किया लेंथ 20 मीटर कैलकुलेशन में, तो मेरे को टाइम पीरियड में एरर आया 0.1 सेकेंड. दिस इज़ द एरर इन टाइम जो मेरे पास आया, ठीक है. इतना मेरे पास एरर आया. अब मेरे को निकालना है, उसने बोला कि मेरे को डेल्टा एल लेंथ में निकाल के बताओ कि कितना लेंथ में एरर आया, फ्रैक्शनल एरर है, लेंथ कितना आया, ठीक है. तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, पहले कि मेरे को टोटल टाइम ट्रैवल निकालना पड़ेगा. पहले स्टोन यहाँ से यहाँ गिरा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, फिर यहाँ से यहाँ पे इसकी साउंड आई, तो मेरे को लेंथ निकालने का वही एको मेथड लगाऊंगा मैं, दैट इज़ 2L. टोटल टाइम पीरियड कैसे आएगा, यहाँ से ऊपर नीचे T1 नीचे तक आने का हो गया रूट 2L बाई जी, ऊपर जाने का टाइम पीरियड क्या हो गया, लेंथ डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ साउंड. नाउ मेरे पास सेम अप्रोच करनी है कि मेरे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन मिक्सचर ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड समेशन है, तो आई विल डू द डिफरेंशिएशन ऑन बोथ द साइड्स. डिफरेंशिएटिंग किया इसको कि एल में कितना चेंज कर या टी में कितना चेंज किया ताकि मेरा एल में जो चेंज आए. तो यहाँ पे मैंने डेल्टा टी में बहुत माइन्यूट चेंज किया दिस, तो एल में कैसे चेंज आएगा. तो यहाँ पे मेरे पास रूट एल का डिफरेंशिएशन इज दिस. सपोज यहाँ पे मेरा रूट को एक्स रेस टू पावर 1/2 हो गया. टी वाई का डिफरेंशिएशन मेरा ये होता है. सेम वे रूट एल का डिफरेंशिएशन हो गया 1/2 डी एल बाई एल प्लस 1/v डी एल इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डी एल. Once we have done this, we have reached now what we do, we divide the whole thing by L. We divide the whole things by L. यहाँ पे मैंने L से divide कर दिया. Then I take the DL out from both the sides. L is I have divide both दोनों sides को मैंने L से divide किया, तो मेरे को finally DL by L ही निकालना है यहाँ पे. बाकी I know the value of dt which is this. I know the value of 120. G की वैल्यू मुझे पता है, L की वैल्यू पता है, V की वैल्यू पता है. I'll put all those value and I'll calculate DL by L. Right? We'll move to the next question. यहाँ पे मेरे को दे रखा है कि how the current varies with temperature and your voltage. ठीक है, how the current varies with temperature and voltage. मेरे को निकालना है error in I. जब वो error in I निकालना है when while measuring in this while measuring the value of I, ठीक है. he has done an error of delta V, इतना एरर कर दिया उसने while measuring the value of I. तो जो measured value आई थी I की 5, ठीक है, और टेम्परेचर था मेरा 300 केल्विन, उसने वोल्टेज में इतना एरर कर दिया था, तब उसका 5 आया. मेरे को ये निकालना है कि I में कितना मैक्सिमम अलाउेबल एरर हुआ है, आई में कितना मैक्सिमम अलाउेबल एरर हुआ है. तो डेल्टा वी की वजह से कितना मेरा चेंज इन डेल्टा आई आया है, दैट इज़ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट. सो हियर अगेन वी हैव अ मिक्सचर ऑफ व्हेनेवर अगर ई आपके इक्वेशन में दे रखा होगा, द बेस्ट अप्रोच इज टू गो विद द लॉग डिफरेंशिएशन. सो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम. डिफरेंशिएट बोथ द साइड डी आई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर, इसका डिफरेंशिएशन ई रेज टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन होता है ई इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स. ठीक है, ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स.
दैट इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम, ई रेज टू पावर एक्स सेम वैल्यू। अब नाउ इसका डिफ्रेंशिएशन मेरे को पता है कि वी के वेरिएशन से आई में वेरिएशन आ रहा है, तो टी इज़ कॉन्स्टेंट, सो डी वी बाई टी, डी वी की वैल्यू मुझे पता है ये, जब मेरे को वोल्टेज में डिफरेंस इतना एरर आया तो मेरे को टोटल एरर है आई निकालना है, ठीक है। बट मेरे पास ऑलरेडी स्टैंडर्ड वैल्यू दे रखी है, ऑलरेडी इनपुट दे रखा है कि वाइल कैलकुलेटिंग, जब मैंने ये वैल्यू यहाँ पे जब मेरी 300 थी और वेलोसिटी वोल्टेज मैंने यहाँ पे जो भी एक्चुअल वोल्टेज होगी वो डाली प्लस टेम्परेचर 3 डाला, तो मेरा यहाँ पे 5 मेरा एम्पियर करंट आया। तो ई रेज टू पावर 1000 वी की यू कैन टेक वी ट्रू वैल्यू ऑफ वी, एनी ट्रू वैल्यू ऑफ वी डिवाइड बाई 300 यू कैन टेक इज इक्वल्स टू -1, यहाँ पे -1 को इधर ले गए एंड यू गॉट दिस वैल्यू। You can take it 300 here and true value of v here, this will give you 6. Here also this is v is true value and here is 300, so same इसकी वैल्यू ले लो या e raised to power 1000 इंटू जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ v दी होगी ट्रू वैल्यू डिवाइडेड बाय टेम्परेचर 300, सो सेम यही क्वांटिटी मेरी यहाँ पे रिपीट होगी, दैट्स वाई सेम क्वांटिटी का जो मेरा रिजल्ट है दैट इज 6, तो आई पुट दिस वैल्यू ऑफ 6 हेयर, दिस इज माई 6 इंटू 1000 टी इंटू डी वी। कितना चेंज मेरा डी वोल्टेज में हुआ है, कितना एरर मेरा वी में आया है जो कि प्रोपोगेट होके आई में आया है, दैट आई हैव टू कैलकुलेट। वी में एरर कितना किया है मेरे मेजरमेंट में 0.01, तो जब मैंने वोल्टेज मेजर कर रहा था तो मेरा इतना एरर था वोल्टेज में, सो दिस एरर गॉट प्रोपोगेटेड एंड आफ्टर डूइंग दिस अर्थमेटिक कैलकुलेशन आई विल गेट अ प्रोपोगेटेड एरर इन आई। Same way, this is another question where your exponential term is there. So energy is related with ET is energy is a function of time, a square plus a square e raised to power minus alpha t। और मेरे को दे रखा है relative error of a is 1.25%, percentage relative error, and percentage relative error of t is delta t by t into 100 1.5, that is it's been given to me, this value relative percentage error in t is 1.5%, relative percentage error in a is 1.25, ठीक है। तो मेरे को निकालना है परसेंटेज एरर इन ई, तो इसमें मेरे को एरर है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया, ए में थोड़ा सा चेंज किया, ओवरऑल कितना चेंज मेरा ई में आएगा, दैट आई हैव टू सी कितना प्रोपोगेट हो रहा है ई में। सो अगेन वी टेक द फर्स्ट इधर, so now we have the multiplication also and e also, so best approach is to separate both the terms, ठीक है, and then so separate both the terms and make it in a summation or the addition manner, so best is to take the log, ठीक है, log लेते हैं, we take the log, log e is equals to, यहाँ पे log of a is 2 log a, यहाँ पे minus alpha t, log e is 1, ठीक है, this value has come। now differentiation of log if y is equals to log x है, तो डिफ्रेंशिएशन अब मेरे को डिफ्रेंशिएट करना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, दिस इज़ माई लॉग एक्स डिफ्रेंशिएशन, ओके 1 बाई एक्स। सो यहाँ पे मेरा लॉग ई है, सो डी वाई इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई एक्स, अगर मेरा वाई इज इक्वल्स टू लॉग एक्स है, ठीक है। सो हेयर आई डू द सेम थिंग, लॉग ई है तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस इज डी ई बाई ई, यहाँ पे भी लॉग ए है, डी ए बाई ए, यहाँ पे मेरा अल्फ़ा डी टी है, डी टी की वैल्यू आई टेक आउट फ्रॉम हेयर बिकॉज मेरे को टी इट्स नॉट गिवन, oh t is given at t is equals to 5, okay, so I'll take the t here and I'll do this 1.5 times into t, तो डेल्टा t की वैल्यू मेरी यहाँ से आ जाएगी, ठीक है, डेल्टा t I'll get it from here, dA by a I get it from here 1.25, then I can calculate the propagation in the value of E from here. Got it? I guess this is clear. So approach में जैसे होता है ना, अगर मेरे पास x है a raised to power m, b raised to power n, इसमें भी जो अप्रोच है कि अगर मेरे पास पावर है और मल्टीप्लिकेशन में है तो फर्स्ट विल टेक अ लॉग एंड देन डू द डिफ्रेंशिएशन, सो विल टेक द लॉग एक्स, बिकॉज लॉग में क्या होती है ना, वो मल्टीप्लिकेशन और पावर वाली चीज़ें
उस पावर वाली चीज़ें मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगी और मल्टीप्लिकेशन वाली चीज़ें समीशन में आ जाएंगी, एडिशन में आ जाएंगी। तो इसमें क्या होगा, m log a प्लस n log b। अब मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगा बोथ द साइड्स। इसका डिफ्रेंशिएशन होगा dx बाई एक्स इज इक्वल्स टू m d a बाई a प्लस n d b बाई b। This is how you have to do if whenever you are having anything which is in multiplication and power. Clear? So next we'll go to this question. So this question says ke abhi you have not done optics, so it's a bit tricky, but I'll try to explain this question in the best way I can. It is mostly on the error only, so but the basic formulas has been used from the focal length of a lens. Okay, तो दैट्स जस्ट दिस फार्मूला। और इस फार्मूला का हमने पता है पहले भी देख लिया, 1/r इक्विवेलेंट में भी देखा है हमने किस तरीके से इस काइंड ऑफ अगर मेरा रिलेशनशिप है इसको किस तरीके से हम लोगों ने एरर प्रोपोगेशन को सॉल्व किया है, हमने प्रीवियसली भी देखा है। बट इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन यहाँ पे भी है, वो थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। इसमें मेरे को क्या दे रखा है, एक ऑप्टिकल बेंच दे रखा है। ऑप्टिकल बेंच है 1.5 मीटर का, दैट मीन्स 150 सेंटीमीटर का। और जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे दे रखी है कि हैविंग लॉन्ग स्केल हैविंग 4 इक्वल डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो इसके अंदर 1 2 3 4 डिवीजन है 1 सेंटीमीटर में। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास जो लीस्ट काउंट है जो मैं कर सकता हूँ दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाय 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ द मिनिमम आई कैन नॉट मेजर दिस मिडिल वैल्यू ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। सो अगर मेरे पास ये है, I cannot measure this middle value of these 2 points. I can only measure this, this, this और this। ये 4 पॉइंट मेजर कर सकता हूँ। लीस्ट काउंट क्या हो गया, ये जो दोनों की मिनिमम, दोनों की मिडिल, ये इतना लीस्ट काउंट हो गया। ठीक है, तो लीस्ट काउंट क्या हो गया, 1/4 सेंटीमीटर। दैट इज़ द मिनिमम आई कैन मेजर हेयर। 4 इक्वल डिवीजन लीस्ट काउंट। ठीक है, सो जो भी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज़ हो रहा है उसका लीस्ट काउंट 1/4 है, क्योंकि यहाँ पे हमारे को स्केल यूज़ हो रहा है तो लीस्ट काउंट उसका 1/4 है। तो डेल्टा एल मेरा आ गया 1/4। अब यहाँ पे मेरे होते हैं 2 u एंड v। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंस। ठीक है, तो u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v इज इमेज डिस्टेंस। अब इसमें मेरे को दे रखा है कि while measuring the focal length of the convex lens is kept at the middle 75। so लेंस मेरा 75 बिल्कुल मिडल पे रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट पिन है 45 सेंटीमीटर मार्क पे। यहाँ से ऑल द मेजरमेंट इज बिन डन फ्रॉम दिस स्केल। 45 मतलब यहाँ पे 50 के पास यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मेरा। ठीक है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट, यू कैन से दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट। और इमेज फॉर्म हो रही है 135 सेंटीमीटर। 135 सेंटीमीटर इज़ 125 के बाद यहाँ पे 135 पे यहाँ पे इमेज हो रही है मेरी, जो इमेज अपीयर हो रही है। इन दिस एक्स में परसेंटेज एरर निकालना है मेरे को फोकल लेंथ में। तो क्या परसेंटेज एरर फोकल लेंथ में क्यों आएगा, क्योंकि मेरे को जब VU मैं कैलकुलेट करूँगा दैट इज़ फ्रॉम द स्केल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, उसका एरर क्या है 1/4। इसमें कुछ एरर आएगा, फिर सेम इसमें एरर आएगा, और वो दोनों एरर इसमें फोकल लेंथ में प्रोपोगेट हो जाएंगे। अब देखते हैं U और V में कैसे एरर कैलकुलेट करते हैं। तो हेयर U में एरर प्रोपोगेशन निकालते हैं हम। तो U की वैल्यू निकालते हैं। U इज़ हैज़ टू बी कैलकुलेटेड फ्रॉम जो हमारा जो लेंस फॉर्मूला में होता है। राइट नाउ हमारी कैलकुलेशन सारी इस पॉइंट से, इसको ओरिजिन समझ के, इस पॉइंट को ओरिजिन। बट ये जो लेंस फॉर्मूला में U एंड V है, ये कैलकुलेशन हमारी इसको ओरिजिन, इस पॉइंट ऑफ व्यू से, इसके रिस्पेक्ट में देखी जाएगी। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालने के लिए मुझे यहाँ से ये वाली लेंथ मेरे को दे रखी है, तो बट आई हैव टू कैलकुलेट दिस लेंथ। ठीक है, तो आई कैन ईजिली डू, एवरीथिंग इज बीन गिवन टू मी। तो यहाँ पे जो मेरा U होगा, U इज़ दिस फ्रॉम दिस पॉइंट। ठीक है, ये मेरे को 45 दे रखा है, ये 75 है, तो 75 माइनस 45। ठीक है, अब ये मैं आई एम डूइंग अर्थमेटिक ऑपरेशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो मैं एरर आएगा मेरा 1/4
दोनों का एडिशन आएगा, इसका एरर प्लस इसका एरर दोनों का एडिशन आ जाएगा. तो माई ओवरऑल एरर हैज़ कम डाउन टू 1/4 प्लस 1/4 0.5. सेम वे जब मैं वी कैलकुलेट कर रहा हूँ, वी ऑल्सो आई हैव टू कैलकुलेट फ्रॉम हेयर टू हेयर. तो यहाँ पे मेरा एरर आएगा दिस इज़ 135 माइनस 75. ठीक है, अब इसमें कितना एरर मेरा हो सकता है कैलकुलेशन में? इसमें जो मेरा एरर कैलकुलेशन में होगा वन अगेन लीस्ट काउंट कितना है इसका एंड इसका कितना लीस्ट काउंट है. आई विल ऐड बोथ द लीस्ट काउंट्स 1/4 प्लस 1/4. सो यू की वैल्यू मेरी आ गई 30 प्लस माइनस 0.5. सेम वे वी की वैल्यू आ गई 60 प्लस माइनस 0.5 टाइम्स एरर. सो ये मेरी यू और वी की वैल्यू आ गई. नाउ आई हैव टू जस्ट पुट इट इनटू दिस फॉर्मूला. अब इसके अंदर मेरा पहले मैं एफ़ निकालूंगा. एफ इज़ 1/v माइनस 1/u और विल टेक दिस एज अ पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ से इस डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव लूँगा. तो मैं यहाँ से अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन, तो दैट इज़ दिस पॉइंट इज़ नेगेटिव. और यहाँ पे अगर इमेज को देखूँगा इस पॉइंट से इधर ही जा रहा हूँ मैं और इट इज़ इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट ओनली, सो इट इज़ अ पॉजिटिव. सो वी मेरा पॉजिटिव है एंड यू मेरा नेगेटिव है हेयर. सो माई यू इज़ माइनस 30 दिस वैल्यू, v is 60. So यहाँ पे मैं फॉर्मूला पुट किया and I calculate the value of f. Now in this I'll differentiate this both the sides 1/f 1/, इसको differentiate किया है as we have seen x is equals to, अगर मेरा फंक्शन है 1/x, इसको डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, dy/dx is equals to 1/x², और 1/x² होता है इसका डिफ्रेंशिएशन, बट वी टेक द dx here. So dy is equals to dx divided by x². So same way by f का किया df divided by x², dv divided by du divided by this. Now I have the value of v dv. This is my v dv. u की वैल्यू भी मेरे पास है. सेम वे f की वैल्यू मेरी यहाँ से आ गई. देन आई कैन कैलकुलेट, एक f को मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे ले जाता हूँ. दिस इज f. सो df by f I can easily calculate them, right? So next, अगेन मेरे को एक रिलेशनशिप दी हुई है. मोस्टली एरर्स एंड कैलकुलेशन में आपको इनपुट और आउटपुट के बीच में एक रिलेशनशिप दी होगी. एक इनपुट में आपका कुछ एरर होगा, यू हैव टू सी के उस रिलेशन के थ्रू वो एरर कितना प्रोपगेट हो रहा है आउटपुट में. सेम वे यहाँ पे मेरे को एक रिलेशनशिप दे रखी है. इसमें बताया जा रहा है कि दिस इज़ अ लैम्डा इज़ कांस्टेंट एंड मेरे को फाइंड आउट करना है कि हाउ टी इज़ वेरिंग विथ थीटा, हाउ टी इज़ वेरिंग विथ थीटा. ठीक है, आई हैव टू कैलकुलेट दिस. सो नाउ अगेन व्हेन एवर यू आर हैविंग दिस सेट ऑफ थिंग्स, अगेन एक्सपोनेंशियल है, साइन वाली चीज़ें हैं, लॉग वाली चीज़ें हैं, या बेस्ट वे इज़ टू गो विद द मल्टीप्लिकेशन, ओ सॉरी डिफ्रेंशिएशन. सो विल डू द डिफ्रेंशिएशन अगेन. आई टेक डी और थीटा मैं दूसरी साइड ले जाऊँगा. हाउ टी इज़ रिलेटेड, टी इज़ इक्वल्स टू λ/2 sin थीटा. सो नाउ मैं यहाँ पे बता रहा है मेरा एस थीटा वेरीज फ्रॉम दिस टू दिस, वी हैव टू फाइंड द डी, वी हैव टू सी द हाउ डी वेरीज. सो थीटा का वेरिएशन किस, अगर मैं थीटा में डी थीटा वेरी करता हूँ तो हाउ माई डी बाई डी वेरीज. ओके, आई कैन ओनली कैलकुलेट द फ्रैक्शनल एरर फ्रॉम हेयर. सो कैसे करना है ये? नाउ सपोज मेरा फंक्शन है y इज इक्वल टू साइन थीटा. अगेन डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा हमारे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन थीटा नहीं आएगा यहाँ पे, साइन थीटा बॉटम पे है. तो इफ़ यू टेक इट इन टू द न्यूमरेटर इट विल बिकम कॉसेक थीटा. सो साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1/cosec थीटा. सो cosec थीटा मेरा 1/sin थीटा आ जाएगा, तो λ/2 cosec थीटा. cosec थीटा का जो मेरा डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस cosec थीटा cot थीटा. दिस इज माई डिफ्रेंशिएशन ऑफ cosec थीटा. λ/2 कॉन्स्टेंट एंड डी थीटा हियर विल कम. व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड बोथ द साइड्स बाय डी. और डी मेरे को क्या दे रखा है यहाँ पे, λ/2. ये मैंने यहाँ पे वैल्यू रख दी डी की जगह. डी इज इक्वल्स टू λ/2 cosec थीटा. यहाँ पे वैल्यू रख दी, λ/2 से λ/2 कैंसिल हो गया, cosec थीटा से cosec थीटा, वैल्यू हो गई मेरी cot थीटा. cot थीटा बचा मेरा, cot थीटा डी थीटा. दैट इज़ व्हाट माय फाइनल रिजल्ट. अब मेरे को देखना है कि हाउ कितना मैं थीटा में चेंज करूँ, हाउ माय फ्रैक्शनल वैल्यू इन डी चेंजेस. सो हेयर cot इट वेरीज विद डायरेक्टली विद द cot थीटा. और cot थीटा कैसे वेरी करता है, सपोज दिस इज 0 डिग्री, दिस इज π/2. सो cot थीटा मेरा इस तरीके से ग्राफ होता है cot थीटा का. सो as theta increases, cot theta decreases, it goes down up to 0 at π/2, then it started increasing and goes up to infinity. Start from infinity, goes up to infinity. That is a graph of cot theta.
सो जैसे जैसे मेरा थीटा इंक्रीज़ करेगा कॉट थीटा डिक्रीज़ करेगा, कॉट थीटा डिक्रीज़ करेगा, तो दिस वैल्यू इज कीप ऑन डिक्रीजिंग. सो मेरे को ये पूछा गया है कि ऐसे थीटा इंक्रीज़ करूँगा तो व्हाट विल बी द relationship in the fractional error of d. That is what's been asked here, right? So errors के most of the questions में ये चीज़ होती है कि you have input है, उसको आपने measure किया है, उसमें कुछ error है, ठीक है. अब वो input is related with some output. अब because of that error in the input you have to see कि output में आपका कितना error आ रहा है. That is what in all the questions you have to do in errors, right? So in this so I think this is the end of this lecture. We have covered up all the errors, all the major questions from the error, and we have seen the theory of error. As we just a quick recap, error is quite inevitable in all the measurements. Definitely we have to consider error so that we can be confident in our final output measurement. So that's why we have to and the error get propagated in the output value. That is depending on the relationship किस तरीके की है. अगर आपके output relationship with input is summation, subtraction, addition, multiplication या mixture या log या sign या any other relationship है तो हम लोग उसको error propagate करेंगे. अगर आपकी basic 4 तरीके की इस तरीके की हैं तो you can do it with the formula, direct formula based. अगर इन चारों के अलावा किसी और तरीके की आ रही है, best way is to go with the differentiation, ठीक है. Then we have seen the accuracy and precision. We have seen random and the systemized error in accuracy and precision. Random error होता है कि it is not in any direction, it is randomly, it is coming here, but absolute but systematic error एक particular direction में ही वो उस ट्रू वैल्यू से दूर रहेगा. दैट इज़ व्हाट अ सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर. इन दोनों के बीच का डिफरेंस. एक्यूरेसी होती है कितना क्लोज आप ट्रू वैल्यू के हो. प्रिसीशन होता है आपस में वैल्यूज़ कितनी क्लोज हैं. दैट इज द प्रिसीशन. हियर वी हैव सीन द टेबल टू फर्दर सी के डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीशन और रैंडम एरर एंड सिस्टमेटिक एरर. देन वी हैव कैलकुलेटेड द एब्सोल्यूट एरर कैसे कैलकुलेट किया जाता है. Then we have seen the propagation of error and we have done certain question. In this question we have covered up के we have seen the absolute error भी देखा हमने. Then we have covered up absolute error calculation देखा in delta t by t. Then we have seen how the error got propagated in t में देखा हमने error कैसे propagate किया by using this our power error in power, this वाला formula लगा के, and error in summation. So not in summation, error in subtraction. So here we have used 3 concepts. In this we have seen how the change in your length and time period affects the g. So length को कैलकुलेट करने में क्या लेंथ और टाइम पीरियड को कैलकुलेशन में किस तरीके से, यहाँ पे मेरे को लेंथ में इफ़ आई हैव बीन गिवन द डायमीटर ऑफ द बॉब तो उसमें मैं लेंथ इफेक्टिव में किस तरीके से पहले इनपुट में किस तरीके से मेजरमेंट करूँगा. दैट वी हैव सीन. अगर मेरे को टी में ही डायरेक्ट टी दे रखा है और मेरे को नंबर ऑफ वाइब्रेशंस दे रखी हैं या डायरेक्ट टी दे रखा है, इन बोथ द केसेस हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट टी, हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट टी एंड देन एल. That has been done in this question. In this question we have seen calculate the Young's modulus. यहाँ पे हमने देखा है कि हमारे को we have not been given the error value but we have been given the actual value. From there we have calculated the error values. Error value क्या होती है? That is just the least count. कितना precisely measurement हुई है और precisely measurement जितनी हुई है, that is what the least count. And the least count is what we take it as the error, maximum error. Here we have calculated the precision and error of observations. Here we have calculated error in this set of relation. This is quite a good question. Here we have calculated error if you are calculated error in L length, if there is an error in your time period. So we have to again get the relationship between L and time, और उसके बाद we have differentiated that. Here we have been given the relationship between I and V, and we have got an error in V and how that error got propagated into I. Here also we have a relationship between energy and A and T. So now how the error in T and A got propagated into E, that we have calculated, we have done through the differentiation. This is a question
Here we have done where we have calculated first the u and v, which is required to calculate the focal length, and then we have calculated the focal length with the differentiation. And in this last question we have given this relationship, and we have to find out how the d, your fractional error in d, varies with the change in your angle theta. So I guess this is for today. We have finished the third lecture of units, dimension and measurement. So next lecture में हम लोग इंस्ट्रूमेंट सीखेंगे, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गेज, एंड विल ट्राई टू डू सम मोर क्वेश्चंस ऑन वर्नियर कैलिपर and screw gauge, comprises of some error based applications also. So yes, so I think we'll end up today. Thank you.